Like if he comes in between, then we'll stop for a minute. Okay. Good morning, friends. आपको on behalf of the Sports Authority of India, Archery Association of India, my experts and team who are a part of the Train the Trainers program, we welcome all of you to this session on biomechanics. आपको बता दें कि biomechanics is a very, very vital part of archery. Today, as we want to move ahead, we want to become the Olympic champions, we want to win the medals at the Olympic level, it is important that all the coaches, archers understand the importance of biomechanics. Archery is a game of motion. Archery is a game of angles. Archery is a game where if you do not understand the Newton's law, all the three laws, the conservation of energy principle, you will not be able to understand why when we are saying that you need to have a proper alignment of the string with the elbow and where the force is moving, and how come you can ensure that 100% of the force is behind the arrow, which is the F cos theta. So that only you can know if you understand the science behind the archery. And today we have with us Mr. Gangadhar. Mr. Gangadhar, as you know, is a national medalist. He has been there with a vast experience of over 20 years himself. He played archery, and for the last 30 years, he has been in the teaching line, helping people study in the NIS. He's been teaching. A lot of the NIS coaches who have passed out, thanks to him, have today become good coaches, and they have put the learnings, what they have taken from him, into practice. So we can learn a lot from him, but more important is that wherever you do not understand any part which he's saying, please ask the question. I'll request all the speakers, that all the participants, that kindly do not send any good morning messages after the session has started. You are only requested to kindly only send questions, and after the end of the session, Gangadhar ji will try to answer all the questions. Because of paucity of time, we are unable to answer. You have the email ID and the mobile number of Gangadhar ji. You can write to him. You can write to the Coaches Development Committee. You can write to the us. We will try to ensure that we are able to answer your question. We'll be sending you the PDF version of the presentation, so that after the presentation, if you have any clarification, you can go through it. And in any case where you cannot understand, you can come back to Mr. Gangadhar ji. So over to Mr. Gangadhar for the wonderful presentation on biomechanics. Yes, thank you, Sanju ji. Thank you very much. So मेरा आज का टॉपिक है बायोमेकेनिक्स एनालिसिस ऑफ आर्चरी. गंगाधर जी, अगर आप कंप्यूटर ऑडियो का यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा सुनाई पड़ेगा, क्योंकि आपका माइक है वो थोड़ा दूर है, इसलिए थोड़ा कम सुनाई पड़ रहा है. अभी सुनाई दे रहा है? अब ज्यादा अच्छा सुनाई पड़ रहा है. यस यस, थोड़ा सा पास आ जाइए जी. यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. आज का मेरा सब्जेक्ट है बायोमेकेनिक्स एनालिसिस ऑफ आर्चरी. तो बायोमेकेनिक्स क्या है? इट इज द पिलर. ये साइंस का एक पिलर है, और वो पिलर के ऊपर अपना आर्चरी खड़ा हुआ है. तो ये आर्चरी का ये जो बेसिक स्टेप्स है, तभी से आपको बायोमेकेनिक्स को आपको यूटिलाइज करना सीखना चाहिए. विदाउट बायोमेकेनिक्स एंड साइंस प्रिंसिपल यू कैन नॉट डेवलप द आर्चरी और ऑफ द बेसिक ट्रेनिंग ऑफ आर्चरी. तो आपको इसको इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है, और साइंटिफिक प्रिंसिपल आपको अप्लाई करना बहुत जरूरी है. विदाउट साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड इस एप्लीकेशन हम लोगों को सही तरह से ग्रोथ होने का चांसेस बहुत लेस है. जैसा कि देखिए बायोमेकेनिक्स है, बायोमेकेनिक्स सब जानते हैं, बट बायोमेकेनिक्स का एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, स्पेशली इन आर्चरी, ये आप कैसा डिलीवर करोगे, कैसा इसको इम्प्लीमेंट करोगे, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ. देखिए, एक बोलो सारा अपना आर्चरी का जो भी इक्विपमेंट है, वाइट का बोलो, विनाइनविन का बोलो, इट इज मेड ऑफ द फिजिक्स प्रिंसिपल. ये सारा फिजिक्स प्रिंसिपल, फोर्स, अलाइनमेंट इस प्रिंसिपल के बेस में बना हुआ है. जब हम चूज करते हैं तो हमें अच्छा इक्विपमेंट चाहिए, हमें बेस्ट क्वालिटी की इक्विपमेंट चाहिए, बट हम नहीं चाहते कि हमारा बेस्ट क्वालिटी का अलाइनमेंट वो इक्विपमेंट के साथ हमारा बॉडी का अलाइनमेंट भी मैच चाहिए. जब बॉडी का अलाइनमेंट प्लस इक्विपमेंट का अलाइनमेंट, फोर्स अगर हम एक साथ करेंगे, एक साथ उसको यूटिलाइज करेंगे, तभी तो हम अच्छे रिजल्ट की तरफ जाएंगे, तभी तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलने का चांसेस है. अदरवाइज क्या होता है, थोड़ा सा भी फोर्स डाइवर्ट होगा तो इट इज हिंड्रेंस टू आवर डेवलपमेंट.
जैसा कि जो आई विल स्टेप बाय स्टेप आई विल फर्दर यू एक्सप्लेन. सो लेट्स आई विल स्टार्ट माय टॉपिक, बायोमेकेनिक्स एनालिसिस ऑफ आर्चरी. तो इसके लिए जानने के लिए हमें थोड़ा सा देखना चाहिए व्हाट इज बायोमेकेनिक्स. बायोमेकेनिक्स इज द ह्यूमन साइंस. इसमें प्रिंसिपल फिजिक्स के प्रिंसिपल यूज किया जाता है. इसमें बोन्स, मसल, जॉइंट्स, इसका स्ट्रक्चरल स्टडी एंड इसके मेम्ब्रेन्स, इसके केबल, हिंचेस, इसके बारे में भी इसका स्टडी करना चाहिए. हाउ इट इज वर्क, मसल कैसा काम करता है, कौन सा मसल काम करता है. व्हेन यू आर अप्लाइंग द फोर्स, वेयर इज अनवांटेड मसल तो अप्लाई नहीं करेगा. अनवांटेड मसल आप यूज करेंगे तो यूर गेट फटीग फास्ट. फटीग फास्ट होगा जो तो आपका एनर्जी लेवल ऑप्टिमम नहीं रहेगा एंड यू कैन नॉट परफॉर्म इन द कंपटीशन. देन उसका व्हाट इज द अप्रोच ऑफ बायोमेकेनिक्स. बायोमेकेनिक्स का अप्रोच क्या है. एक्सटर्नल और इंटरनल जो फोर्सेस है हमको उसको स्ट्रेट हमारे बॉडी के ऊपर आते अलॉन्ग विद द बो, उसको हम स्टडी करके उसको मिनिमाइज करके हम लोग उसको पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ लेना चाहते हैं. इसको मिनिमाइज करना है. जैसा कि यू टेक द हमारा होल आर्चरी का बो एंड कंप्लीट आवर बॉडी सिस्टम, इट इज मूविंग व्हाइल यू आर टेकिंग एंकर. थोड़ा सा उसको बॉडी के अंदर इफेक्ट आता है बिकॉज ऑफ इट्स एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बिकॉज ऑफ पावर ऑफ बो. तो ये बो को हम लोग स्टडी करेंगे, मोशन वाइज इफेमाइड बो एंड एरो. उसी के लिए हम लोग ये थोड़ा सा बायोमेकेनिक्स के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी आपको दे रहा हूँ. बायोमेकेनिक्स इज वेरी वास्ट सब्जेक्ट. ये छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बट पर्टिकुलरली हमें बायोमेकेनिक्स क्या यूज करते हैं आर्चरी में, उतना बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे. उसके बाद हम अलाइनमेंट एंड इस एप्लीकेशन के बारे में जाने जाएंगे. देखिए, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोमेकेनिक्स, द सम प्रिंसिपल, बहुत सारे प्रिंसिपल बट सम इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है. समेशन ऑफ जॉइंट फोर्स. ये जॉइंट फोर्स का एप्लीकेशन हमें बहुत जरूरी है. समेशन इसको टुगेदर लाना बहुत जरूरी है. देन कंटिन्यूटी ऑफ जॉइंट फोर्स. जो फोर्सेस हम जॉइंट आए उसको कंटिन्यूएशन में लाने के लिए वो परफेक्ट एप्लीकेशन होना चाहिए, परफेक्ट लाइन ऑफ फोर्स होना चाहिए, परफेक्ट एंगल होना चाहिए, तभी उसको आप फोर्स आपको ऑप्टिमम फोर्स आपको यूज करने मिलेगा. देन डायरेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन. द फोर्स को हम एप्लीकेशन आप कैसा डायरेक्शन करेंगे. अगर रॉन्ग डायरेक्शन में एप्लीकेशन करेंगे तो हमारे इसका एरो के ऊपर इसका इट डाइवर्टेड एंड इट टिल्टेड टू एनी अदर डायरेक्शन. एक बार आप थोड़ा सा मैं अपने इसमें बोलना चाहता हूँ. अब देखिए, सम माइक्रो मूवमेंट जब आप रिलीज के समय आप रिलीज करते हैं, रिलीज के समय माइक्रो मूवमेंट और माइक्रो मोशन में सम एमएम मोशन में कोई गलती करते हैं, फॉल्ट में या टेक्निक में गलती करते हैं. तो 50 मीटर और 70 मीटर में जाने में जो आपको पैराबोला मिलता है वो एरो ट्रेवल हो, वो गलती एरो के अंदर ट्रेवल होती है. तो एंगल ऑफ डिफरेंसेस विल बिकम वेरी वास्ट. जैसे कि 10 में जाने वाला है, लेकिन वो फ्रैक्शन ऑफ मूवमेंट आप जैसा कि रिलीज के पहले और रिलीज के एट द मोमेंट आपका ट्रिगरिंग की वजह से और फिंगर रिलीज की वजह से आपका फोर्स डाइवर्ट होता है टू अनदर लाइन. तो जो अपने इमेजिनरी लाइन और फोर्स लाइन के साइड में होके चला जाता है, तो डेफिनेटली उसका पाथ, एरो का पाथ चेंज होगा, एरो का पाथ चेंज होगा, लाइन ऑफ एरो चेंज होगा, लाइन ऑफ एरो होगा, तो उसका रिजल्टिंग आपको टारगेट मिलेगा. इंस्टेड ऑफ गोइंग योर येलो इट मे बी डाइवर्ट टू लेफ्ट राइट, वो डिपेंड अपॉन आपका फोर्स किस तरफ से डाइवर्ट होता है. देन स्टेबिलिटी. ये स्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर बहुत सारा फैक्टर आता है. योर बॉडी स्टेबिलिटी, योर स्टैंड स्टेबिलिटी, योर ड्राइंग स्टेबिलिटी, योर सिगमेंटल स्टेबिलिटी. सिगमेंटल स्टेबिलिटी मतलब बो एंड एंकर करने के बाद आपका एक सिगमेंट बनता है. जब फुल ड्रॉ में आप आते हैं उसका स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी फर्दर इट इज डिपेंड अपॉन आपका बो बाउंडेज के ऊपर होता है, फिटनेस लेवल पे होता है, हाउ यू अप्लाई द फोर्सेस के ऊपर होता है, हाउ योर डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस के ऊपर होता है, ये देन एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस के ऊपर होता है, देन ये स्किल के ऊपर भी होता है. ये बहुत सारा होता है. बट दिस बायोमेकेनिक्स आल्सो इट्स हेल्प टू इंप्रूव योर स्किल. अगर आप कोई गलत करते हैं, आप तो प्रैक्टिस तक कर रहे हैं, लेकिन अपना एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अगर रॉन्ग साइड में होगा तो यू आर वेस्टिंग अननेसेसरी योर एनर्जी. तो ये करेक्ट वे में अगर आप फोर्स चला जाएगा तो ये डेफिनेटली इट विल बेनिफिट फॉर आर्चर्स. देन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. सो बेसिक लॉस है द इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. जब तक आपको लॉ ऑफ स्टेबिलिटी आपने पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ जब तक स्टेबिलिटी में जब तक कुछ नहीं करते आप उसका मोशन नहीं होता. देन डेफिनेशन ऑफ फोर्स, सेकंड लॉ ऑफ मोशन. जब तक फोर्स है जो वो स्ट्रेट लाइन ही फोर्स होता है. डायरेक्शन आपका उसका पूरा स्ट्रेट में थोड़ा सा भी आपको उसको ये करेगा तो इट्स लाइन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स में चेंज. देन थर्ड लॉ, जैसा कि आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन. जैसा कि आप एंकर में आप बोट छोड़ते रिलीज करते स्ट्रिंग को, तो ऐसा बेसिक हाइट में जाके इट्स वाइब्रेट, वो जर्क हो जाता है. वो जर्क में इमीडिएटली आपको पहुंच जाता है. मतलब एक्शन एंड रिएक्शन आपको उसमें मिलेगी. जो आप एक्शन लेगी उसका डेफिनेटली रिएक्शन मिलेगी. वो रिएक्शन आपको कैसा स्टेबिलेट करते हैं. जो एक्शन तो हमें चाहिए बट उसका रिएक्शन बहुत ज्यादा है, उसको कैसा आप स्टेबिलेट करेंगे उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है. दैट हेल्प यू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. देन रोल ऑफ बायोमेकेनिक्स. बायोमेकेनिक्स का रोल क्या है
नंबर 1 रोल ऑफ इसका है आपका एग्जीक्यूशन ऑफ टेक्निक एंड लर्निंग द टेक्निक्स, परफेक्ट पोजीशन में लर्निंग एंड टेक्निक, इवोल्यूशन ऑफ टेक्निक, ये चीज आपको देखने मिलना चाहिए, ये इसका चीज ये होना चाहिए। देन फाइंड द कॉजेस एंड फॉल्ट, ये आपको अगेन फर्दर इट्स हेल्प यू कि आपको कॉजेस, आपका कॉज क्या है फॉल्ट का, उसका एग्जीक्यूशन क्या है, उसका मूवमेंट क्या है, उसका क्या सॉल्यूशन है, आपको ये फर्दर गाइड करेगा। देन क्वालिफिकेशन ऑफ मोटर एबिलिटी, मोटर एबिलिटी की क्या क्वालिटी है, वो कैसा उसको रीड करेंगे, वेदर इट इज रिस्पॉन्डिंग योर मोटर और फंक्शनिंग और नॉट, मोटर मींस योर एबिलिटी टू वर्क, मोशन ऑफ द वर्क, then it is muscle का quality, it is called motor abilities. Then it helps you again analysis, कैसा आप एनालिसिस करेंगे, ये कैसा इसको एनालाइज करके आप कैसा फर्दर इसके डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। देन इस नेक्स्ट पॉइंट है एनालिसिस ऑफ ट्रेनिंग एक्सरसाइज इक्विपमेंट एंड डेवलपमेंट, बायोमेकेनिक्स आपको हेल्प करेगा टू एनालिसिस वेदर यू आर डूइंग करेक्ट, रॉन्ग, परफेक्टली और यू गोइंग टुवर्ड्स करेक्ट डायरेक्शन। ये आपको कंसीडर करेंगे एंगल वाइज, डायरेक्शन वाइज और इसके मूवमेंट वाइज। देन फोर्सेस एंड एनर्जी, इसके अंदर फोर्सेस एंड एनर्जी होता है एनर्जी ट्रांसफर, देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देन इकोनॉमी ऑफ एनर्जी। इकोनॉमी ऑफ एनर्जी हमें बहुत जरूरी है, द एनर्जी ऑफ ट्रांसफर हमें बहुत जरूरी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें बहुत जरूरी है, इकोनॉमी ऑफ एनर्जी मिनिमम टाइम मैक्सिमम रिजल्ट, ये जो इकोनॉमी होता है। अदरवाइज यू आर वेस्टिंग एनर्जी, अननेसेसरी एनर्जी। लॉन्ग होल्ड में आप जैसा कि आप एंकर में लॉन्ग होल्ड करते हो तो यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी। जैसे कम टाइम में आप एरो शूट करते हो, दैट इज द मिनिमम टाइम, तो उसके अंदर अपना एनर्जी सेव होता है। सो दिस एनर्जी यू कैन यूटिलाइज फर्दर नेक्स्ट शॉट और नेक्स्ट इवेंट की आप कर सकते हैं। जैसा कि इसमें काइंड्स ऑफ एनर्जी, देयर आर टू थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें सबसे नंबर 1 है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ लिम्स, बोथ लिम्स का अंदर जो पावर है वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर लिम्स के अंदर है। Further, this potential energy converted into kinetic energy, and because of kinetic energy, motion take place and your object will fly in the air. Here, object हमारे पास अभी तो एरो है, ये kinetic energy की वजह से वो अपना पाथ में कन्वर्ट होता because of kinetic energy force that arrow traveled in the air. Then energy transfer, how it is energy transfer? When an archer, आप एक इसका जो आपका बो के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, लिम्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, व्हेन आर्चर ड्रॉ करता है बो को, बो खींचता है, जब एंकर पोजीशन मिल जाता है, दिस पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी फर्दर एज सून एज यू रिलीज द एरो, दिस पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। This kinetic energy, because of this kinetic energy, arrow travel in the air, arrow take place out of bow and fly in the air, and it is reached to the target. Then as soon as the path and parabola it's increase, the path of arrow, अगर जैसा कि आप path arrow ऊपर जाता है because of kinetic energy, then kinetic energy के moment के time में it is gravitational energy, it is pulled down. जैसा कि एक high optimum level में देखो आपका arrow का path ऊपर है, arrow का parabola ऊपर है, एरो का ट्रेजेक्टरी ऊपर है, बट as soon as इस एंगल आपको एंगल चेंज नहीं होता, वो जैसा ही ऑप्टिमम एंगल आने के बाद इट इज पुल डाउन, ऐसा डाउन आ जाता है। जैसा कि इमेजिनरी लाइन आप देखो, आप इमेजिनरी लाइन, आई लाइन और आपका फोर्स लाइन टुवर्ड्स जी आपका फ्रीज कर गया। गंगाधर आपका सुनाई नहीं पड़ा है, फ्रीज कर गया है। विश्वजीत काइंडली चेक कीजिए। Yes, sir, 1 minute. हेलो द स्क्रीन। गंगाधर आपका हेलो, कैन यू हियर? अब फिर से कीजिए। ठीक है, हेलो, हाँ हाँ सुनाई पड़ रहा है, स्टार्ट कीजिए। सुनाई पड़ रहा है? कहाँ तक सुनाई पिया संजय जी? आपका जो लास्ट आपने जो बोला था ना बायोमैकेनिक्स के ऊपर जो बोले थे आप, उसका जो
उस वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के ऊपर तक था, लास्ट आपका सुनाई पड़ा था। ओके 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 ओके, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ना, हाँ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ना। हाँ, उस पे जाइए स्लाइड पे। हेलो हाँ जी, हेलो, हाँ सुनाई पड़ रहा है, बोलिए बोलिए। अभी कहाँ तक सुनाई दे स्क्रीन रहा शेयर है? कीजिए, स्क्रीन आपका नहीं दिख रहा है, स्क्रीन शेयर कीजिए, वैसे पहले किया था आपने। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? नहीं, स्क्रीन नहीं आ रहा है आपका, शेयर कीजिए स्क्रीन। ऊपर से स्क्रीन पे शेयर करने के बाद स्क्रीन पे बटन दबाइएगा और नीचे में ऑडियो और वीडियो को ऑन कीजिएगा, फिर शेयर कीजिएगा। ओके, देखता हूँ। या आप बोले तो विश्वजीत वहां से चला सकता है आपको, अगर दिखा, आप बस बोलते रहिए, वो स्लाइड चेंज करता रहेगा। आ गया, ओके, लेट मी आ गया, ठीक है, आ गया। हाँ बिल्कुल। अब आप ओके, दिस इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ना। नहीं, इसके आगे, आगे जाइए, आगे जाइए। नहीं, आगे आगे बैक से था। हाँ, यहाँ तक था, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। देन एनर्जी ट्रांसफर और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये देखिए दो इसमें अंदर होता है, एनर्जी कैसा ट्रांसफर होता है, एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देन इकोनॉमिक ऑफ एनर्जी, ये इकोनॉमिक कैसा होता है, इसका मिनिमम आपको इसका ख्याल देना चाहिए। इकोनॉमिक आप कम से कम एनर्जी में आपको मैक्सिमम एनर्जी मिलना चाहिए। तो दिस टाइप ऑफ एनर्जी आपको चाहिए, तो इसका काइंड्स कौन सा है? पोटेंशियल एनर्जी इट इज स्टोर्ड इन लिम्ब। ये पोटेंशियल एनर्जी हमारा लिम्स के स्टोर में है, और उसके बाद ये पोटेंशियल एनर्जी, इसके बाद खींचने के बाद आपको इट इज कम टू योर एंकर पॉइंट। आप जैसे एंकर पॉइंट पे लेके आएंगे, उसके पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड देन एज सून एज यू रिलीज द एरो, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के वजह से ही आपका वो एरो पास्ड फ्रॉम बो। जैसा कि एनर्जी ट्रांसफर, जैसे कि जब आप लिखा है कि when archer draw the bow backside, जैसा कि आर्चर आप बो पीछे खींचते हैं, as soon as they draw the bow, this potential energy start converting into elastic potential energy. Because of this elastic potential energy, you can draw the limbs, limbs bend हो जाता है, and as soon as they reach the limbs bend and anchor position and arrow release from anchor, the force traveled in the air, that's उसके behind the principle because of this kinetic energies. As soon as the arrow release, this potential energy, elastic potential energy converted into kinetic energy, and because of this kinetic energy arrow travel into air. अभी डिपेंड करता है आपको ट्रैवल में कैसा करता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि एरो लाइन, इमेजिनरी लाइन एंड फोर्स ऑफ लाइन, ये टारगेट के लाइन में है, बट इसका जो ट्रैवल है, एरो का ट्रैवल इट इज फ्रॉम पैराबोलिक साइड, उसके ऊपर है। ये तीन लाइन के ऊपर में एरो का ट्रैवल है, जो ऊपर है, ये जो पैराबोलिक लाइन है, दैट इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ लाइन, पैराबोला ऑफ लाइन और लाइन ऑफ एरो, जो भी बोल सकते हैं आप, लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एरो, जो भी बोलते हैं उसको। जैसे वो ऑप्टिमम लेवल में जाएगा, तो इमीडिएटली वो ऑप्टिमम लेवल में जाके फिर से डाउन हो जाता है, एक आर्क बन जाता है, फिर से डाउन हो जाता है। जस्ट सून एज आर्क डाउन होना जाएगा, देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स उसको एक्टिव हो जाता है, उसको ग्रेविटेशनल एनर्जी में वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। देन इकोनॉमी की एनर्जी, हमको इसमें क्या आना चाहिए? इकोनॉमी चाहिए। एनर्जी के अंदर जितना कम एनर्जी में हम अपना शॉट यूज करेंगे, निकालेंगे, हम इतना एनर्जी हम सेव करेंगे। तो ये सब बेसिक प्रिंसिपल है बायोमेकेनिक्स का। सबमिशन ऑफ जॉइंट फोर्स, उसके लिए हमारा जो जॉइंट फोर्सेस है, ये प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए और प्रॉपर लाइन में होना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा भी डाइवर्ट करेंगे एंगल लेफ्ट राइट करके, तो हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है इट चेंज इनटू फर्दर, दूसरा डिवर्ट होकर दूसरे साइड में चला जाएगा। देन लाइन ऑफ फोर्स, वही एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स, हम कौन सा फोर्स अप्लाई करके कौन से लाइन में करता, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आर्चरी एस्पेक्ट। स्किल, जैसे कि हम लोग आप ट्यून करते हो, बो को ट्यून कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? बो फोर्स और एरो फोर्स और लाइन का जो मैच कर रहे हैं, तो बो ट्यूनिंग हम चाहते हैं। बो अच्छा रिजल्ट के लिए हम बो ट्यूनिंग चाहते हैं, लेकिन हम कभी आर्चर की ट्यूनिंग के बारे में सोचा है? कभी हमारे अलाइनमेंट के बारे में सोचा है? हमारे अलाइनमेंट में चल, हमारा अलाइनमेंट क्या है? दिस एंगल, हाउ यू अप्लाई बायोमेकेनिकली परफेक्ट ऑन दैट स्किल, पर्टिकुलर स्किल में हम लोग किस तरह से एंगल करते हैं। हमारा जो साइड का जो एंगल है वो तो परफेक्ट हमारा, हमको फोकस दिखाएगा टारगेट में। जब हमारा एल्बो का एंगल तो दिखाई नहीं देगा,
हमारा राइट लेफ्ट बो का एंगल दिखाई नहीं देगा, हमारा जॉइंट फोर्सेस का एंगल दिखाई नहीं देगा। ये दिखाई देने के लिए, ये देने के लिए हम लोग को बायोमैकेनिक्स का जो टूल्स है एंड जो प्रिंसिपल्स है एंड दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट हेल्प्स। तो लाइन ऑफ फोर्सेस है, ये आगे चल के वो स्टार्ट हो जाए। तो हमें क्या करना चाहिए अभी, मैक्सिमम रिजल्ट मिनिमम एफर्ट। हमें मैक्सिमम रिजल्ट, बायोमैकेनिक्स का क्या एडवांटेज है, एनर्जी का क्या एडवांटेज है, टू गेट द मैक्सिमम रिजल्ट इन मिनिमम एफर्ट। हमें मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए कि हम सुबह से शाम तक एरो चला रहे हैं, कोई 400 एरो चला रहा है, 500 एरो चला रहा है, 600 एरो चला रहा है, इट डिपेंड अपॉन आर्चर एंड आर्चर्स लेवल। तो इसमें क्या होगा, हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जब हम लोग 36 एरो में कंपटीशन में एनर्जी हमारा लॉस हो जाता है, हम लॉस की तरफ जाता है, लैक्टिक एसिड की तरफ फॉर्म होकर हम लोग हमारा रिजल्ट मिलने मुश्किल हो जाता है। तो ये एनर्जी हम कैसा सेव करते हैं, तो इसकी एनर्जी का भी आपको गाइड करेगा, बायोमैकेनिक्स प्रिंसिपल आपको गाइड करेगा कि ये कैसा कैसा एनर्जी आपको सेव करता है। मिनिमम टाइम मैक्सिमम रिजल्ट, मैक्सिमम फोर्स मैक्सिमम एक्यूरेसी। बट फोर्स भी आपको अगर थोड़ा सा भी डाइवर्ट हो जाएंगे, तो जैसे कि आप देखा है कि फोर्स कैसा लाइन ऑफ फोर्स है, हम लोग जो एप्लीकेशन करते हैं, टाइम ऑफ फोर्स हम अप्लाई करते हैं, तो जैसे कि हमारे टारगेट 50 मीटर में 70 मीटर में, रिकॉर्ड में 50 मीटर में, अगर सब रिकॉर्ड में 70 मीटर और कंपाउंड में 50 में, जस्ट हम आज एंकर में पहुंचते हो, जैसे कोई भी स्मॉल 1 mm फॉल्ट या माइक्रो फॉल्ट एंकर पोजीशन में और बो हैंड में हम लोग करते हैं, तो उसका जो एरर है, उसका एरर जब 70 मीटर और 50 मीटर जाने के बाद कितना एंगल चेंज होगा, उसका जो लैंडिंग एंगल क्या होगा, उसका ट्रेजेक्टरी क्या होगा, ये आपको स्टडी से पूरा बायोमैकेनिक्स से दे सकता है। तो कितना एंगल में कितना चेंजेस होगा, कितना डाइवर्ट होगा, ये सब और हम इसको कैसा मिनिमाइज करेंगे, इसको कैसा एप्लीकेशन थ्रू इसको कैसा कम करेंगे, और कौन से इसमें पोजीशन में आने के बाद हम परफेक्ट और रिदमेटिक में जाएंगे और कौन से इसमें जाएंगे, ये आपको फर्दर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको स्टडी करके दिखा दूंगा। Then that uses of biomechanics. Biomechanics का यूज क्या है, to achieve the high level performance and score and prevention injury. मेन है इसका है प्रिवेंशन इंजरी, प्लस हाई लेवल स्कोर तभी आएगा आपका इंजरी ठीक होगा। इंजरी तभी ठीक नहीं आएगा आपको जब आप एप्लीकेशन आपका फोर्स ड्राइव होगा, वो जो भी एप्लीकेशन होगा, बो का एप्लीकेशन होगा चाहे आर्चर का एप्लीकेशन होगा, वो अगर हेवी होगा आपका एप्लीकेशन आपका मैच नहीं होगा। जैसे वो परफेक्ट होगा बट आपका एंगल डिवर्ट होगा, एंगल ठीक नहीं होगा, तब इसमें भी इंजरी आने की, क्योंकि बिकॉज यू आर यूजिंग अनवांटेड फोर्सेस, अनवांटेड एनर्जी आप उसको टेक्निक में डाल रहे हैं, इसलिए आपको इंजरी आता है। वह इंजरी आता है क्योंकि आपका जो पावर है वो के पावर के साथ मैच नहीं हो रहा है, दिस बिकॉज ऑफ इंजरी के चांसेस ज्यादा है। तो एक आर्चर को कितना एरो शूट करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये सेशन वगैरह सब ये सब आपको आप तो चल रहे हैं, आर्चर को परफॉर्मेंस, आर्चर से हार्डवर्क चलेगा, लेकिन आर्चर का कितना आना चाहिए ये तो उसके पास नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। ये सब कोचेस को एजुकेटेड होके कोचेस को उनको बोलने चाहिए कि कैसा कैसा इकोनॉमी में आपको एनर्जी रहना चाहिए, कैसा कैसा एंगल चाहिए, कितना चाहिए, एक्टवर्ड्स प्लानिंग के ऊपर भी ऐसा आएगा। जैसे कि रुपेश ने कल बोला है, बहुत ब्यूटीफुल लेक्चर दिया है कि प्लानिंग के बारे में, दिस आल्सो एनर्जी आल्सो इकोनॉमी वहाँ से एक पार्ट हो जाता है। लोड एंड रिकवरी का से एक क्वेश्चन आता है, लोड एंड रिकवरी आता तभी तो आपका एनर्जी बैक आएगी, लोड एंड रिकवरी बैक आएगी तभी एनर्जी आपकी बैक आएगी, दिस इज आल्सो वन पार्ट। देन टूल्स इन बायोमैकेनिक्स, आप टूल्स क्या क्या यूज करते हैं बायोमैकेनिक्स की स्टडी करने के लिए। देन मोशन एनालिसिस सिस्टम, ये जो है दिस मोशन एनालिसिस मतलब हाई स्पीड वीडियो कैमरा, दिस मोशन में करना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देन डिजिटल नॉर्म्स है, देन इलेक्ट्रोमायोग्राफी, दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, देन डिजिटल वीडियो एंड कंप्यूटर एनालिसिस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसा कैसा कि मैं अपने स्लाइड में वीडियो डिजिटल कैसा करें, डिजिटल वीडियो कैसा एप्लीकेशन और कैसा इसको आपके बारे में चलेगा। देन डिले वीडियो प्लेबैक, ये भी आपको बहुत जरूरी है करके इसको स्टडी करने के लिए, आपको इसको फीडबैक देगा आपको कि आपने क्या गलती किया है, क्या नहीं है, आपको क्या सुधारना है, ये सारा चीज आपको फीडबैक देगा। देन हार्ट रेट मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटर का मोस्टली यूज होता है क्योंकि दिस इज फिजियोलॉजिकल बट यू कैन स्टिल यूज इट इन बायोमैकेनिकल, क्योंकि जब आप आर्चर प्रैक्टिस करता है तो कंपटीशन में उसका हार्ट रेट समथिंग डिफरेंट, बट और प्रैक्टिस हार्ट रेट इज डिफरेंट। व्हाई दिस इज फ्लैट चेंजेस, बिकॉज ऑफ फिजिकल, बिकॉज ऑफ एंजाइटी और बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग एंगल और बिकॉज ऑफ चेंजिंग समथिंग करके। जैसे कि अब साइकोलॉजिकल डिप्रेस होता है तो उसका जब वो हेवी होता है, जैसे कि वो हेवी हो गया तो पाउंडेज उसको खेलने में मुश्किल होता है, तो उसका स्किल में प्रॉब्लम आएगा, उसका टेक्निक में प्रॉब्लम आएगा। तो टेक्निक में प्रॉब्लम आएगा तो डेफिनेटली उसका बायोमैकेनिकल जो एंगल्स है वो चेंज होगा। ये बायोमैकेनिकल एंगल, फोर्सेस ऑफ एंगल चेंज होगा तो उसका जो रिजल्टिंग है एरो के ऊपर जो आएगा इट इज चेंज ऑफ पाथ, एरो पाथ चेंज होगा एंड एरो स्टार्टेड scattered, I don't want to say the scattered,
तो एरो जो ग्रुपिंग है वो आपको उसका सही तरीके से नहीं आएगा जैसा वो प्रैक्टिस में करता है. दिस सिस्टम वी हैव टू स्टडी इन वेरी क्लोजली कि ये कैसा कैसा, एंड इट विल फीडबैक आपको पूरा प्रॉपरली आपको देगा कि कैसा कैसा स्टडी. इसी के लिए हम लोग बायोमैकेनिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. देन बायोमैकेनिक्स देखिए कैसा कैसा एनालाइज करना चाहिए. बायोमैकेनिक्स एनालिसिस, शूटिंग, जब आर्चर आप एक शूट करता है उसके अंदर बॉडी के अंदर एक्टिव इन्वॉल्व, उसके आर्चर के बॉडी के अंदर इन्वॉल्व मसल्स, अपर मसल्स, ट्रंक, अपर बॉडी, ये सारा चीज वर्किंग टुगेदर जब आप शॉट लेते हैं. प्लस आर्चर का मसल, ये तो बॉडी पार्ट हो गया, प्लस आर्चर के बॉडी पार्ट के ऊपर स्केलेटन के ऊपर मसल लगी हुई है. वो मसल्स कैसा टुगेदर आपको आना है, ये सब कैसा मसल का क्या इन्वॉल्व होगा, कैसा कैसा होगा, ये सब इलेक्ट्रोमायोग्राफी में, वीडियो कैमरा में, कंप्यूटर एनालिसिस में आपको इसको तरीके स्टडी करने के लिए मिल गया. इट विल गाइड आल्सो कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, क्योंकि एनालाइज सिस्टम जरूरी है. हमारा इंडिया में क्या होता है, जैसे कि इंडिया की बात कर रहे हैं, हमें परफॉर्मेंस तो चाहिए, हमें इक्विपमेंट तो अच्छा चाहिए, लेकिन ये प्रिंसिपल हम कहीं तो भी खो बैठे, ये प्रिंसिपल को हम यूज नहीं कर रहे. तो हमें जितना भी ये प्रिंसिपल यूज करेंगे उतना डेफिनेटली हमारे को बेनिफिट होगा, क्योंकि मेंटेनिंग उसका फॉर्म, मेंटेनिंग उसका स्किल, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डेफिनेटली इट इज बेनिफिशियल. इसका डिसएडवांटेज कोई नहीं है. एंड द साइंस इट इज द बेस्ट ऑफ योर स्किल, ये पकड़ लेना चाहिए आपको. विदाउट साइंस यू कैन नॉट डेवलप, आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा. देयर इज नो शॉर्टकट इन परफॉर्मेंस बेसिस. आपको करना परफॉर्मेंस बेस में आपको कोई शॉर्टकट नहीं, आपको साइंस का हेल्प लेना ही पड़ेगा, तभी आप आपका ग्रोथ, आपका डेवलपमेंट, आर्चर्स का परफॉर्मेंस ग्रो कर सकते हैं. देन बायोमैकेनिक्स एनालिसिस, आप देखिए ये शॉट्स, जब हम लोग बायोमैकेनिक्स एनालिसिस करते हैं तो ड्रॉ करते हैं, तो बोन अलाइन करते हैं, फोर्सेस अलाइन करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा उसके बोन्स और फोर्सेस का एंगल चेंज करने का मसल जुड़ा हुआ है. कौन कौन सा मसल जुड़ा है देखिए, थोड़ा सा इन शॉर्ट बोलता हूँ कि देखिए सम प्राइमरी मसल्स, जैसे कि अपर बैक मसल में रम्बर्स है, स्कैपुला है, ट्रेपेजियस है, डेल्टर्स है. अब ड्राइंग में देख लीजिए, ये भी दिखाई है, पिक्चर में देख सकता है. देन लैटरस में डोर्सी है, रोटेटिंग कॉफ मसल्स है, ग्रुप ऑफ मसल्स है, सो मेनी मसल्स है. देन सुप्रापाइनेटस है, सुप्राटेरिस है, सुप्रामेनिस है. दिस टाइप ऑफ मसल्स इज इन्वॉल्वड इन एक्चुअली एक्टिंग व्हेन द ड्रॉ द पोजीशन. ये सारा मसल आपका एक्टिव मसल्स है. जैसा कि ये देखिए आपके रम्बर्स रेड इस फिगर में देखिए रम्बर्स मसल दिखा है. ये पर्टिकुलरली आपका बैक टेंशन होल्ड करने में काम आ जाता है और उसको स्पाइन में पकड़ के रहता है. दिस इज द सारी इंपॉर्टेंट मसल. दिस इज आप बोल सकते हैं दिस इज द स्पेसिफिक मसल्स. स्पेसिफिक मसल्स है, आपको इसको यूज करना. अगर यूज नहीं होता तो उसको यूज करने का आपको फॉर्मूला यूज कर देगी, इसको डेवलप करना ही पड़ेगा, तभी इट्स हेल्प टू यू इम्प्रूव योर स्किल. देन बायोमेट्रिक एनालिसिस के अंदर आपका डेल्टॉइड आएगा. डेल्टॉइड इज मेन, डेल्टॉइड मसल आपका ग्रुप ऑफ मसल्स है. ये डेल्टॉइड के ऊपर वो पकड़ के आपको जो ड्राइंग हैंड में और लेफ्ट हैंड में उसको आपका बॉल एंड सॉकेट के ऊपर रहता है, उसको आपको स्टेबिलिटी देने में हेल्प करता है. बेटर इज प्रॉपर्ली वर्किंग नाउ दैट आल्सो इट बायोमेट्रिक एनालिसिस आपको गाइड करेंगे. देन अनदर इज देयर लैटिसिमस डोर्सिस, इज द बिगेस्ट मसल. जस्ट एज सून एज यू टेक द एंकर, ट्रांसफर और लोडिंग करते हो, एंकर के पोजीशन में आ जाते हो, तभी ये मसल का यूज स्टार्ट हो जाता है. बिफोर उसके स्टार्ट एक्टिंग, जैसे खड़े होते हैं उसे हो जाता है, बट एक्चुअली वर्क इसका स्टार्ट हो जाता है. ये मसल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल द मसल्स आर इंपॉर्टेंट, अपना अपना मसल्स का ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट दिस मसल्स आर ग्रेट. दिस मसल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. इन शॉर्ट में बोल रहा हूँ क्योंकि बायोमेकेनिक्स इज द पार्ट ऑफ द एनालिसिस, बट बायोमेकेनिक्स के साथ साथ कुछ मसल का नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ. देन इट इज ट्राइसेप एंड बाइसेप. जब आप ड्रॉ करते हो ट्राइसेप एंड बाइसेप का रोल शुरू हो जाता है. पुल द ड्राइंग में पुल कर सकते हो, जब पुल करते हो उस टाइम तो उसका आपका मसल का एक्चुअली फेज ऑन ट्राइसेप एंड बाइसेप का वर्क स्टार्ट हो जाता है. बिकॉज ऑफ बैक ट्राइसेप होल्ड्स, यू होल्ड द स्टेशनरी पोजीशन, योर बो स्टेशनरी पोजीशन में होल्ड करते हो और एंगल मेंटेन करने के लिए उसको ट्राई कर. दिस मसल विल हेल्प. एंड दिस मसल इफ यू आर नॉट यूजिंग प्रॉपर्ली, समटाइम्स आपका बाइसेप से यूज करता है, देन योर हैंड विल गेट मोर स्टिफ, बॉडी स्टिफ. अगर मसल अगर यूज प्रॉपर्ली यूज नहीं होगा तो सम बॉडी स्टिफ का रीजन वही है, यू आर अनवांटेड मसल इज अटैकिंग योर एंगल्स, और वो आप सही यूज नहीं कर सकते. अगर प्रॉपर मसल यूज करेंगे यू विल शूट परफेक्टली विथ रिलैक्स पोजीशन एंड बॉडी स्टिफ नहीं रहेगी. तो ये सारा स्टिफनेस आता है. मोस्ट ऑफ आर्चर देखेंगे आपका बॉडी स्टिफ होता है. दे आर बिकॉज ऑफ उनका जो मोशन है, उनका जो ड्राइंग एंगल है सही नहीं है, एंड द अनवांटेड फोर्स अलोंग विथ अनवांटेड मसल्स वो यूज कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ दैट इनका ये सारा प्रॉब्लम होता है. देन
कौन कौन सा है, कौन कौन सा मसल इसमें आ जाता है, जैसे कि शोल्डर्स में होल्डिंग मसल्स में, शोल्डर में कौन कौन सा आता है, डेल्टॉइड्स आता है, डेल्टॉइड्स है, इंफ्रा स्पाइनेटस है जैसे ड्राइंग में आता है, चेस्ट में आता है तुम्हारा पेक्टोरस आता है, देन बैक मसल्स आता है लैटिसिमस डॉर्सी, ट्रेपेजियस, teres minors, lombards, and then arms में आता है बाइसेप एंड ट्राइसेप. दिस टाइप ऑफ मसल्स आपको देखने मिलती है. देन पॉइंट टू कीप इन माइंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रेंथनिंग द मसल मास. जब आप ये सारा चीज करते हो वेट ट्रेनिंग में जाते हैं, जब आप लोग मसल का इतना सारा नॉलेज है, यू हैव टू यूज ओनली स्पेसिफिक मसल्स. जो स्पेसिफिक मसल बना है वो ही के ऊपर काम करना है. अगर यू आप ट्राइसेप की जगह बाइसेप में वर्कआउट करोगे ज्यादा, तो योर मसल मास विल इंक्रीज. मसल मास विल इंक्रीज, तो इट इज हिंड्रेंस टू योर टू मेक योर एंगल करेक्शन. वो आपको मसल मास जरा आप ज्यादा होगा. मसल मास मतलब आप बॉडी बिल्ड नहीं करना है हर चीज में, आपको मसल को आपको स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस की तरफ लेके जाना. आपका मसल का स्ट्रेंथ बढ़ाना है, इंड्योरेंस कैपेसिटी बढ़ाना है, बट आपको मसल मास इंक्रीज नहीं करना. जैसे कि बॉडी बिल्डर देखा होगा, सब आपको बड़े बड़े मसल दिखते हैं, वो टाइप का आप मसल नहीं बनाए. अगर उनकेस अगर मसल मास इंक्रीज होता है तो आपको उसका डिसएडवांटेज झेलना पड़ेगा, क्योंकि डिसएडवांटेज यही है कि वो आपको एंगल करेक्शन होने नहीं देंगे बिकॉज ऑफ मास मसल. सो ये थोड़ा सा चीज आप ख्याल के देखिए. अगर आर्चर, पर्टिकुलर आर्चर के लिए आपको स्ट्रेंथनिंग मसल ही होना चाहिए, नॉट मसल मास. देन वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, इसके लिए वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज रिस्पॉन्सिबल कौन सा इंक्रीज करना चाहिए. इसके सबसे पहले एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ऐसा मत कीजिए आप. एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में क्या सटल ज्यादा होगा. एक ही मसल का वर्कआउट मत कीजिए, ओवरऑल मसल, स्पेसिफिक मसल जो है उसके ऊपर काम कीजिए. इसमें लो वेट में हाई रिपीटेशन दीजिए, मतलब वेट कम दीजिए और हाई रिपीटेशन दीजिए. इसमें आपका क्या होगा, स्ट्रेंथनिंग मसल होगा और इंड्योरेंस बढ़ेगा. स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इंड्योरेंस बढ़ेगा, ये सारा चीज आपको बेनिफिशियल हो जाएगा. देन प्रॉपर अलाइनमेंट, यहाँ से आपका बायोमैकेनिक्स का अलाइनमेंट का पार्ट शुरू हो जाता है. दैट इज द बेसिक पार्ट. ये आने से पहले वो जरूरी चीज होता है, बेसिक एंगल एंड टॉप व्यू में ये व्यू आपको देखने नहीं मिलेगा कोई भी आर्चर को. हम फ्रंट व्यू में देखते हैं, बैक व्यू में देखते हैं, टॉप व्यू ऊपर के हेड के ऊपर से क्या चेंजेस हो रहा है फोर्स में, लाइन ऑफ फोर्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं. जैसे देखिए ना, आप देखिए ए में देखिए हॉरिजॉन्टल एंगल, देखिए हॉरिजॉन्टल टॉप व्यू है, हॉरिजॉन्टल एंगल है. ए में देखिए क्या है कॉन्टेक्ट, ये मतलब वो हैंड में आपका वो ग्रिप में क्या चेंजेस हो रहा है ऊपर से, वो दैट देख. ये जो है ये पोर्शन जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं देख लेना है, टाइटन होल्ड आ गया, इट्स अनवांटेड. अगर फोर्स अप्लाई कर दिया, टॉर्क, इट मे बी गो टू टॉर्क. टॉर्क इज मोस्ट डेंजरस थिंग्स. इट मे बी पॉजिटिव टॉर्क और नेगेटिव टॉर्क, वो आपको पता ही नहीं चलेगा. इस माइक्रो मोशन मूवमेंट है ये सारे टॉर्क. ये माइक्रो मोशन मूवमेंट आप इसी अलाइनमेंट और इसी थ्रू आप एनालाइज कर सकते हैं. नेकेड आई में कैच करना इट इज रियली टफ. कर सकते हैं नेकेड आई में, बट इट शुड रिक्वायर वेरी एक्सपीरियंस कोच और एक्सपीरियंस एनालाइजर आई कैन से, तभी आप कैच कर सकते हैं. अदरवाइज इट डिफिकल्ट. ये सारा जितना हम नेकेड आई नहीं कर सकते, जब हमको ये कंप्यूटराइज एप्लीकेशन बायोमेकेनिकल प्रिंसिपल के थ्रू आपको अलाइनमेंट करने में हेल्प हो जाएगा. जैसे कि शोल्डर लाइन है, देन अपर आर्म लाइन है, देन फोर्स लाइन है, फोर लाइन है, ये सर आपको स्टडी करने में बायोमेकेनिक्स में मिलेगा. देन प्रॉपर अलाइनमेंट देखिए, बेसिक फॉर्म में देखिए फ्रंट व्यू है, आपको फ्रंट व्यू तो देख सकते हैं. हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं, ग्राउंड में भी आपको फ्रंट व्यू देखेगा. फ्रॉम टॉप व्यू देखो, हेड पोजीशन स्टेशनरी होना चाहिए. द लाइन ऑफ एरो देखिए, देन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देखिए, देन जो अप्लाइड कर रहा है वो फोर्स देखिए. आपका फोर्स कहाँ होना चाहिए, तो स्ट्रेट देखिए. रेड एंगल कैसा क्रॉस हो रहा है, देखिए दिस इज क्रॉस, दिस इज नॉट परफेक्ट एंगल. देखिए ऊपर अपना आर्म ऊपर कर दिया, जब एल्बो ऊपर कर दिया, तो इट इज डेफिनेटली योर चेंजिंग योर एंगल. तो ये एंगल आपको फ्रंट एंगल से दिखाई देगा, लेकिन टॉप व्यू से भी दिखना इसको जरूरी है. Then it is come to the proper angle. देखिए फोर्स रिएक्शन इसका चपूला ए एंगल है. ऊपर से आप टॉप व्यू में जब देखोगे तो एंगल देखो, ए देखो, वो आर्म और एरो लाइन, इट इज चेंजिंग. ये एंगल अगर आप हर टाइम शॉट में आप परफेक्ट रखोगे, परफेक्ट एंगल लेके आओगे, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा. और ये इट्स हेल्प यू स्टडी. दिस इज द बायोमेकेनिकल एस्पेक्ट है जो आपको इसको स्टडी करेगा कि आर्चर हर बार एक जैसा ला रहा है या नहीं ले रहा है. वन शॉट के अंदर और दूसरे शॉट के अंदर डिफरेंस है, कहाँ डिफरेंस है. हेड एंगल में डिफरेंस आ रहा है, लाइन ऑफ एक्शन में डिफरेंस आ रहा है, एरो लाइन में डिफरेंस आ रहा है, या वो आर्म में डिफरेंस आ रहा है. ये सारा चीज आपको स्टडी करेंगे. इट्स हेल्प बायोमेकेनिकल एनालिसिस. देन बेसिक फॉर्म में इधर देखिए आप फोर्सेस, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस है, कैसा कैसा अप्लाई करते हैं. हेड देखिए, हेड एंगल देखिए, हेड एंगल स्टेशनरी है,
देन लाइन ऑफ फोर्स देखिए, द बो आर्म देखिए, देन शोल्डर लाइन देखिए। दिस एंगल शोल्डर लाइन एंड ब्लो लाइन आर्म, ये दोनों के अंदर चेंजेस होता है बिकॉज ऑफ इनप्रॉपर। देन लाइन ऑफ फोर्स देखिए, ये थोड़ा सा आप इसको क्लियरली आप स्टडी करेंगे तो इट विल। दिस सब्जेक्ट इज लिटिल टफ आई फील बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन फिजिक्स, तो थोड़ा सा आपको इसको यूज करना और थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ लेने की कोशिश कीजिए। अगर जितना आप समझेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। देन प्रॉपर अलाइनमेंट। अभी प्रॉपर अलाइनमेंट क्या है, देखिए प्रॉपर अलाइनमेंट फोर्सेस का प्रॉपर अलाइनमेंट, आपका प्रॉपर अलाइनमेंट वही है कि स्ट्रेट, कोई भी फिजिक्स का एक ही प्रिंसिपल आप याद रखना कि स्ट्रेट फोर्स, हर चीज आपको स्ट्रेट चाहिए। फिजिक्स का प्रिंसिपल ही स्ट्रेट, तो हमको यहाँ पे फिजिक्स यूज कर रहे हैं तो फिजिक्स हमें स्ट्रेट ही चाहिए। जो भी हमें स्ट्रेट मिलेगा, स्ट्रेट में हमें मैक्सिमम एक्यूरेसी मिलेगी और मिनिमम एनर्जी में, मिनिमम एनर्जी कन्वर्जन में तो मैक्सिमम मिलेगा। और प्रॉपर एंगल, वो स्ट्रेट कब आएगा, आप प्रॉपर एंगल यूज करोगे, प्रॉपर मसल यूज करोगे तभी स्ट्रेट आपको आएगा। देखिए इधर से देखिए एंगल सी, देखिए सी एंगल देखिए, जब एल्बो का आपका बैक शोल्डर का एंगल जो है कितना आप इसको एडजस्ट करेंगे ड्रॉइंग एंगल से, दैट विल गाइड यू इन परफेक्टली। यानी सेम साइड इज अगेन करके डी का। देन इट इज टॉप व्यू, देखिए एंगल कैसा चेंजेस होता है, फोर्स ऑफ एंगल देखिए, लाइन ऑफ फोर्स देखिए, शोल्डर का लाइन देखिए, देखिए बैक साइड में शोल्डर का लाइन कहाँ से आ रहा है उसको आपको एडजस्ट करना है। ड्राइंग फोर्स देखिए, ड्राइंग फोर्स, ये सारा चीज आपको एडजस्ट करना पड़ेगा थ्रू कोचिंग एस्पेक्ट और थ्रू बायोमैकेनिकल एनालिसिस एस्पेक्ट। ये सारा चीज आप एडजस्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे तभी आपको करेक्ट वे में, पॉजिटिव वे में वर्कआउट हो रहा है, यू टेक द डायरेक्शन। देन वर्टिकल फोर्सेस एंड इट्स रिएक्शन, बो हैंड में क्या क्या होता है जब आप वर्टिकल फोर्सेस में देखते हैं और अप्लाई करते हैं, बो आर्म, वो हम के अंदर जैसा कि आप ये एंगल चेंज करो जाओगे तो ये हम भी आएगा, कि दोनों भी आपको एंगल मेंटेन करना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए, कि दोनों कंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ फोर्सेस दोनों होना चाहिए, दोनों के लेफ्ट एंड राइट का दोनों को भी कंटिन्यू होना चाहिए। आप राइट एंगल चेंज करने जाओगे तो लेफ्ट में प्रॉब्लम आएगा। ये दोनों फोर्स एप्लीकेशन परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सेगमेंट है फोर्स ऑफ जॉइंट सेगमेंट, जॉइंट फोर्सेस, ये आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। यू ट्राई टू मेक इट इन द परफेक्ट अलाइनमेंट। अगर नहीं आता है तो वो आपको, ये बायोमैकेनिक प्रिंसिपल है, बायोमैकेनिकल स्टडी है, इट विल हेल्प यू। थोड़ा सा डिफिकल्टी इसमें है टू एनालाइज कैसा होना, क्योंकि आपके पास सपोर्ट चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आपको लेकिन इंप्रूव करना चाहिए। परफॉर्मेंस के सामने आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसा परफॉर्मेंस ले रहे हैं, नहीं आप परफॉर्मेंस ले रहे हैं वेरी गुड, आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इस तरह से देखा जाता है। तो ये आपको परफॉर्मेंस मिलने के लिए क्या चाहिए, क्या स्टडी है उसके पीछे, क्या क्या है, कोई भी नहीं बोलेगा। जैसे कि फॉरेन का आर्चर देखो, इतने बड़े बड़े कोचेस आते हैं, आयरो ऐसा जाना चाहिए, हम 350 363 मार रहा है, 355 मार रहा है, लेकिन ये 355 के पीछे क्या स्टडी है, उन्होंने क्या क्या वर्कआउट किया है, वो आपको कोई नहीं बोलेगा। एज पर माय नॉलेज, समटाइम्स आई मे बी रॉन्ग आल्सो, मेरे हिसाब से तो ये है कि ये सारा चीज नहीं आपको दिखाएगा, प्लानिंग कैसा है, ये कैसा है, बट बिहाइंड दिस एप्लीकेशन, बिहाइंड में क्या क्या काम किया है, उसका रिसर्च वर्क क्या है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देगा, आपको देगा ही नहीं। कोई भी फॉरेन का कोच रहो, वर्ल्ड का बेस्ट कोच रहो, आपको आई थिंक यू डोंट शेयर, अगर दे भी दिया तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स है उसके व्यू से है, उस हिसाब से आर्चर है, वो कौन से आर्चर के हिसाब से किया, वो हमें मैच नहीं होंगे। तो ये सारा बेसिक नॉलेज, बेसिक चीज का जो नॉलेज है, हमें ये थोड़ा सा गेन करना बहुत जरूरी है आज के डेट में। अगर आप 2024 का एम देख रहे, 2020 ओलंपिक्स का एम देख रहे, दिस ऑल द बेसिक चीज आपको चेंज करना ही पड़ेगा एंड राइट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। देन टेक प्रॉपर अलाइनमेंट एंड बेसिक फॉर्म्स, ये जो लास्ट स्टेज है आपका प्रॉपर अलाइनमेंट। देखिए प्रॉपर अलाइनमेंट आप करेंगे, ड्रॉ फोर्स देखिए, लाइन ऑफ फोर्स देखिए, ड्रॉ फोर्स और लाइन ऑफ फोर्स और बॉल लाइन में जितना एंगल कम होगा उतना आपका एक्यूरेसी का ज्यादा चांस आएगा। इससे एक्चुअली आता है बैरल एंड गन के शेप में, ये सारा चीज आएगा आपको बैरल एंड गन। देखो सामने देखो बैरल में बनेगा करेगा, जैसे कि आप जो देखा जाएगा आपका अपर फोर्स, आपकी वर्टिकली फोर्स, आपको एरो देखिएगा, सामने देखिए वो हैंड में एरो दिखाई है, राउंड में दिखाया एरो अप एंड डाउन, जब अप एंड डाउन है जाता है दिस वर्टिकल फोर्स एक्ट हो जाता है। आप कभी कभी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन रॉन्ग होगा, लाइन ऑफ फोर्स रॉन्ग होगा, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स रॉन्ग होगा, और इसमें और एक प्रॉब्लम है, इक्विपमेंट फैक्टर का भी लॉट हो गया, बो का वेट ज्यादा होगा या कम होगा, बो का वेट कब होगा, पहले से अब ज्यादा होगा, ड्यूरिंग कंपटीशन कम होगा, साइकोलॉजी के फेयर से कम होगा,
और फिजियोलॉजिकल के चेंजेस की वजह से कम होगा, क्या इकोनॉमिक एनर्जी से कम होगा, दिस पार्ट भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा कि ये बो सडनली बो हेवी क्यों हो रहा है, व्हाई दिस मोमेंट स्टार्टेड वर्टिकली मोमेंट क्यों स्टार्ट हो गया आर्चर का, तो दिस इज द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ आर्चर। ये सारा चीज आपको कैलकुलेट, एंड दिस विल हेल्प ओनली बायोमैकेनिकल एनालिसिस, ये बायोमैकेनिकल एनालिसिस कर सकते हैं, तभी आपको एनालाइज करके आप पॉजिटिव वे में जा सकते हैं। जस्ट 1 minute, I'll show some slide so you can understand. You closely observe this. How the angle changes. इसको साउंड कम है, ये टॉप व्यू में ज्यादा इसको हाँ, तो आप बोल दीजिए गंगाधर जी, जब वो वॉइस नहीं आएगा तो यू कैन टेल। हाँ, जिसका इसका थोड़ा सा वीडियो का साउंड कम है, मैं बोल दे, इसको टॉप व्यू में ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। देखिए कैसा, देखिए कैसा वो हैंड का एंगल चेंज हो रहा है, दिस इज रॉन्ग एंगल, दिस इज फर्दर इट इज रॉन्ग एंगल। Yes, you try to pick it back. This is the basic position for which most archers strive. Classic. Yes. Just try to maintain this type of angle. Sound posture and form. ये तभी होगा, आपका लाइन ऑफ फोर्स एंड ड्राइंग एंगल आप सही करोगे। जनरली ये सब चीज आपको देखने नहीं मिलता है। देखो स्ट्रेट फोर्स देखिए, Problem is that very few people have arm and body dimensions that allow them to actually attain this position. Instead, most archers find themselves in a position more like this. It's close, but it has even more problems associated with it. These problems can all be assessed at 3 critical angles. Angle A, the angle of the bow hand. देखिए वो हैंड के एंगल में देखकर कैसा चेंज होता है आपका। Line of force. Angle B, the angle of the bow shoulder between the bow arm and the shoulder line. ये शोल्डर एंगल देखिए। And angle C. The angle of the string knocking. हेड एंगल एंड तुम्हारा आपका रिस्ट एंगल आल्सो ये चीज यहाँ पे बहुत मायने रखता है। To make things even worse, many archers get a little lazy and end up with a slightly open stance, such as this. Here, this देखिए wrong application of angles. The archer's form has even greater problems. This is totally wrong. Let's talk about the static balance of the archer, these angles, and why they are so critical. When an archer stands at full draw, there's a load applied to his body by the bow. This load is applied देखिए फोर्स देखिए, application of force and the draw hand at the string. The archer must hold these loads in balance in a static, stable posture. एक लेफ्ट हैंड का फोर्स देखिए, ये दोनों फोर्स में देखिए एप्लीकेशंस। देन एल्बो का देखिए, एल्बो डायरेक्शन इज रॉन्ग। This is simply not the case. All angles greater than 0 degrees either यहाँ cause 3 एंगल में प्रॉब्लम आता है, adverse lateral loading at these points. मोस्टली वो हैंड में, शोल्डर में और राइट एल्बो में। In all cases, the greater the angle, the greater the adverse load, and the more significant the muscular variability. Let's analyze this by starting at angle A, the angle of the bow hand. Here, the bone parts are loaded on the bow hand at the grip. Most of this load is taken directly straight into the bow arm. Then देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपका शोल्डर से आप मेंटेन कर रहे हो उसको। Unfortunately, there must be an angle at A to allow for string and arrow clearance. यहाँ पे बैरल शेप बन गया आपका। Causes an offset load that wants to pull the bow arm forward. Then vertical force must be countered by a moment about the bow shoulder. This rotating force. This moment is maintained by back tension. These muscles must hold the load back at a full arm's length, so even a small load could present a fatiguing and highly variable effort. Angle B at the bow shoulder is even more critical because of the complexity of the shoulder joint. The bow shoulder must handle 2 loads. The moment required to resist the adverse lateral load of the bow hand,
and the direct compressive force is transferred from the bow hand through the bow arm. These compressive forces are applied directly to the shoulder. Not all of the load is taken directly and compressively into the shoulder girdle. Here, the angle between the bow arm and the shoulder line determines what portion of the load is taken into the shoulder girdle in a stable manner and what portion is taken laterally. The greater the angle, the greater the lateral loading. This how it is angle changing. We'll try to push the shoulder out of line. Yeah, देखो कैसा change करना है तो कैसा applicant करना है. Your extending position, how applications. See again you're straight, you're making straight head angle, then wrist angle. The static loading balance, but also because see this is how this force you applied is wrong, zigzag force. This improper force. Against the chin, the angle between the draw arm and the arrow. This force can only be applied by a moment. This shoulder movement देखिए आपका. And this requires bicep tension. The problem continues with the draw wrist. The moment created by the biceps is applied to the forearm. If the wrist is kept relaxed, then it bends awkwardly. Keeping the wrist straight requires a moment about the wrist, and this requires tension in the inner forearm. Here again, we like to believe that we are working with a relaxed forearm. The laws of statics tell us that this is impossible. If angle C is reduced to 0 degrees, then the lateral force is no longer required, and both of these moments are eliminated. Only then can the muscular activity of the bow arm be reduced to its minimum. The greater complication caused by angle C has to do with the release. With these complex and varying moments and loads, there is much muscular activity which must be coordinated in order to produce a smooth and consistent release. In addition, the angle naturally wants to pull the draw hand to the side. This can also cause a release variability. Any lateral pull on the release can cause a wide variation in the release. You are applying the wrong forces on arrow. So definitely the arrow will be diverted. Is to pull the draw hand If you apply the proper angle of arrow, the arrow will travel straight. Possible and without the need for any coordinated muscular activity. This enables the smoothest. This is his perfect angle, straight angles. You have to apply the same position, so arrow will go to straight. Now that we know all about these angles and the need to minimize them, let's talk about how we can accomplish this. Let's start by getting out of the comfortable open stance and getting serious. You see, closely observe. By rolling the body back about the bow shoulder, the archer can arrive at neutral parallelogram stance. From this point, many archers work to eliminate You see the angle. This is going to perfect angle. Yeah. See this perfect. You are matching the perfect draw force and arrow line and line up. Everything is perfect. So far back, there is little range left for path motion at full draw. Yes. Sometimes overstretching also is bad. So see how it is the head angle and you are making correction. Rotates the body back about the bow shoulder. He obtains a dual benefit. Not only can he bring angle B at the bow shoulder down to 0 degrees, but as angle B is reduced, so is angle C at the draw hand. Once the archer is rotated back to an open position far enough to reduce angle B to 0 degrees, he can often adjust his head and anchor to fully eliminate angle C also. From this position, the only angle left is angle A. The archer must slowly squeeze this angle down until it is only as large as this. Finally, this type of angle हमें चाहिए. This angle सबसे अच्छा best angle है. देखिए front angle देखिए, back muscle का angle देखिए और line of force देखिए. Line of force, arrow force, straight force, all summation of force get together. This is the great combinations. This is the best position for a true straight back release. So arrow will also fly. This perfect is manner. The position for which the archer should strive. This is the wedge. Yes. See. Just a moment. So, wait a minute. Come again. दिखाई दे रहा है? Hello? Yeah, go ahead. Hello? गंगाधर दिखाई दे लाइट आ गया पड़ रहा है आगे बढ़िए ओके देखिए बायोमेकेनिकल एनालिसिस देखिए आपने 2 आर्चर है ये स्पेशली मैं मेरे आर्चर को कोचिंग देता था बेसिकली आई अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ बायोमेकेनिक्स सी हाउ यू मेंटेन देखिए उसका एंगल देखिए
ये हमारे कलकत्ता साई के आर्चर है, देखिए मेंटेन एंगल देखिए, उसका बॉडी पोजीशन देखिए। आई वर्क ऑन लिटिल दिस ऑन प्रिंसिपल एंड आई गेट रिजल्ट आल्सो। सो आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो ये थोड़ा थोड़ा बायोमैकेनिकल एप्लीकेशन आपको मिलेगा। आपको चाहिए, आपको एप्लीकेशन चाहिए, उसको अप्लाई करना चाहिए, तभी आपको सही डायरेक्शन से जा रहे हैं। जस्ट 1 मिनट, इसको बड़ा करता हूँ। यस, देखिए स्ट्रेट फोर्स हम लोग अभी तक देखा है, उसमें बायोमैकेनिक्स में स्ट्रेट फोर्स क्या है। देखिए पुलिंग फोर्स, स्ट्रेट फोर्स, एनालाइज एंड योर आपका एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड एल्बो लाइन, ये सारा चीज आपने देखा है, ये कैसा कैसा होना चाहिए, ये सारा चीज आप लोग देख लीजिए। देन देखिए आपका वर्ल्ड का ग्रेट आर्चर, उसका क्या पोजीशन है देखिए। फर्स्ट स्लाइड में देखिए, सेकंड स्लाइड देखिए, थर्ड में देखिए, उसका एप्लीकेशन देखिए, एंगल ड्रॉ एंगल देखिए, लार्ज देखिए उसका पोजीशन, सेम जैसा कि आप बायोमैकेनिक प्रिंसिपल में देखा है। उसका बेस्ट पोजीशन उसका एनालाइजिंग लाइन ऑफ फोर्स, स्ट्रेट एंगल, एवरीथिंग इज इन परफेक्ट मैनर। देखिए ये सबसे बड़ा चीज है, हम अप्लाई करते हैं ये चीज को, हम लोग बहुत सारे आर्चर में भूल जाते हैं कि जब हम लोग स्ट्रेट एंगल फोर्स अप्लाई करते हैं, वो हैंड में स्पेसिकली हम वो हैंड को आप स्ट्रेट रखना चाहते हैं, स्ट्रेट अप्लाई करते हैं फोर्स को, बट स्ट्रेट अप्लाई करते करते इसमें रोटेटरी मूवमेंट ज्यादा होने के चांसेस है। रोटेटरी मूवमेंट होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ इसका बो पाउंडेज, इनप्रॉपर टेक्निक, इनप्रॉपर ग्रिप भी होता है। ये सारा चीज आप ग्रिप से करेक्ट नहीं कर सकते, ये सारा चीज आपको शोल्डर से आपको अलाइन करना पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट डेंजरस फेस इन आर्चर। ये सब इसको आप करेक्शन करेंगे तो डेफिनेटली आपको दिखाई देगा। पिक्चर ऊपर में देखिए, वो चीज अपवर्ड है, उसको रोटेट करना पड़ेगा, ये डाउनवर्ड रोटेट करना पड़ेगा, तभी उसको आप परफेक्ट मैनर में उसका फोर्स ऑफ एप्लीकेशन ले पाओगे, लाइन ऑफ डायरेक्शन लेना मिल जाएगा as per the biomechanic principles for result oriented। देन देखिए ये सारा, ये आर्चर में देखिए एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट इसका एल्बो है वो थोड़ा सा फ्रंट में है, फ्रंट में है तो उसको बैक लाने के लिए आपको जैसा एरो दिख रहा है, उसको बैक फोर्स अप्लाई करने से तभी उसका स्ट्रेट होगा। इसका बैरल, इसका एरो लाइन देखिए दूसरे साइड में है, उसका बो लाइन देखिए दूसरे साइड में, फोर्स लाइन देखिए, एप्लीकेशंस लाइन देखिए, एंगल देखिए एल्बो का, शोल्डर एंगल देखिए, ये सारा चीज में उसको प्रॉब्लम, फ्यूचर प्रॉब्लम आएगा। अपने इंडिया में मोस्ट ऑफ आर्चर यू कैन फाइंड आउट लाइक सच पोजीशन में, तो इसको अगर बायोमैकेनिक आप परफेक्ट करेंगे, एंगल परफेक्ट डालेंगे, ये देख लेना। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, ये तभी आप कर सकते हैं एंगल वगैरह चेंजेस के अंदर व्हेन वो पाउंडेज इज आर्चर के कंट्रोल में है। थोड़ा सा भी वो पाउंडेज आर्चर के कंट्रोल में है देन इट इज डिफिकल्ट। आपको इसको कंट्रोल करने के लिए, सारा एंगल चेंज करने के लिए एक तो वो पाउंडेज कम करना पड़ेगा, उसका परफेक्ट एंगल लाना पड़ेगा, और लाने के बाद उसका कैपेसिटी के हिसाब से, आर्चर के इंड्योरेंस के हिसाब से, आर्चर के स्ट्रेंथ के हिसाब से बहुत देना पड़ेगा। समटाइम्स आर्चर का फॉर्म बहुत अच्छा रहता है, लेकिन समटाइम्स आर्चर का फॉर्म इज टेक्निक, एवरीथिंग इज फाइन, बायोमैकेनिकली आल्सो फाइन, बट वो पाउंडेज हेवी होने के बाद उसको सारा चीज वो पाउंडेज, बिकॉज ऑफ वो पाउंडेज हेवी, उसका पुलिंग स्ट्रेंथ ज्यादा लगता है, सो इसका एंगल डेफिनेटली एंगल चेंजेस होने का, एंगल डाइवर्ट होने का चांसेस ज्यादा है। देखिए ये क्या, अगेन वी आर अप्लाइंग द स्ट्रेट आल्सो, एरो लाइन स्ट्रेट है, फोर्स लाइन स्ट्रेट है, राइट एल्बो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एंड लेफ्ट एल्बो में जहां रेड सर्कल दिखा है, दिस एल्बो, लेफ्ट एल्बो इज रोटेटिंग, अपवर्ड्स रोटेटिंग। सो क्या होगा, जो इसका एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है आपका बॉडी का, दैट इज डाइवर्ट, बट एरो लाइन स्ट्रेट है, द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो अप्लाई किया है आपने, स्ट्रेट लाइन फोर्स, वो दोनों मैच नहीं हो रहा है। स्ट्रेट लाइन फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एरो फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स, तीनों के अंदर कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। सो डेफिनेटली इट इज डाइवर्ट फोर्स, इट्स इफेक्ट ऑन एरो। सो एरो उसका स्कैटर्ड हो जाएगा, एरो ग्रुप छोड़ के चला जाएगा, और देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन शूटिंग ग्रुपिंग ऑफ एरोस। देखिए ये दो आर्चर देखिए, अभी रिसेंटली हम लोग देखते बायोमैकेनिकल थिंग्स परफेक्ट, इनका एरो पोजीशन देखिए आप, जैसा कि अभी पहले सेमिनार में देखा गया, अभी स्ट्रेंथ चल रहा है इंडिया में, पहले स्ट्रेंथ चल रहा है, स्ट्रेंथ था कि क्लिकर 2 to 3 mm चाहिए, बट रिसेंटली आप 2 सेमिनार में सुना, इसका भी देखा आपने, ब्रैड एलिसन का वीडियो भी देखा, 1 mm एक्सपांड के बाद 1 mm लाने के लिए आपको इसके पीछे कितना वर्कआउट करना पड़ेगा, कितना कंफर्टेबल जोन पर देखना पड़ेगा, कितना एंगल एडजस्ट करना पड़ेगा, कितना एफर्ट आपको अप्लाई करने का, कितना स्ट्रेट लाइन फोर्सेस आपको देखना पड़ेगी, कितना एंगल चेंज करना पड़ेगा, कितना इसके पीछे रिसर्च करना पड़ेगा, ये सारा चीज आपको एनालाइज करेगा। ये तभी होता है एवरीथिंग इज परफेक्टली अलाइंड एंड परफेक्ट मैनर में, एंड इट इज कंफर्ट
जोन में वो शूट करेगा, देन ओनली पॉसिबल, अदरवाइज इज हाईली इम्पॉसिबल। जितना परफेक्शन की जाएंगे उतना उसका स्कोर को डेवलप होगा, जितना एक्यूरेसी की तरफ जाएगा, जितना उसका परफेक्शन लूज होगा, एंगल चेंजेस होगा, दैट इज डिसएडवांटेज फॉर पर्टिकुलर आर्चर। देखिए सेम जैसे पहले की दिख रहा, अभी बॉडी स्ट्रेच में क्या दिखाया था, जो पहले एंकल दिखाया था आपको, वो सारा चीज में डबल आया है। तो इसमें देखिए एप्लीकेशन फोर्स, इसमें वीडियो में भी दिखाया था, इसमें भी देख रहे हैं आप, इसमें भी देखिए कि इसमें देखिए, अभी दो हैंड में देखिए, हम एप्लीकेशन फोर्स प्रॉपर है, एंगल ऑफ फोर्स प्रॉपर है, ड्राइंग एंगल प्रॉपर है, एप्लीकेशन एंगल प्रॉपर है, बैक मसल भी टाइट है, बट लेफ्ट एल्बो, वो हैंड का एल्बो जो रोटेटिंग है, वो फोर्स रोटेट हो रहा है, एंड प्लस ग्रिप में आ रहा है, ग्रिप में एंगल में देखिए इट इज प्रेशराइंग मोर, सो यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है, दैट एंगल भी आल्सो आपको मायने रखना है। और ये सारा स्टडी आपको ओनली बायोमेकेनिक्स के हेल्प से आप स्टडी कर सकते हैं। थोड़ा सा नेकेड पॉइंट में इसको करना, शॉर्ट टू शॉर्ट आप कर सकते हैं, एक शॉट में देख सकते हैं, बट व्हाट इज द वेरिएशन वन शॉट टू अनदर शॉट, it is difficult, then another shot to another shot, difficult, then what is the variation of the 6th shot, again difficult, then what is the variation of 36 shot, again difficult। आप वो 36 शॉट आपको सही मारोगे तभी आपको हाई स्कोर की तरफ चलेंगे। अगर 36 शॉट के अंदर वेरिएशन आएंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोरिंग के ऊपर इफेक्ट आएगा। सब माइन्यूट मिनिमम इफेक्ट, वहां पे आपको मैक्सिमम आपको स्कैटरिंग दिखाई देगा। तो ये सारा आप चीज आपको, जितना आपको इसको मिनिमाइज करोगे उतना आपका बेनिफिट मिलेगा चांसेस। ये सेम एंगल करके ये शोल्डर एंगल में आपको दिखा दिया, इस वीडियो में भी दिखाया था, सो आई विल नॉट गिव दैट मच टाइम फॉर दिस वन, फर्दर बहुत सारा आगे है। देन ड्रॉ आर्म के अंदर भी दिखाया, वीडियो के अंदर भी दिखाया। देखिए अभी ड्रॉ फोर्स लाइन मतलब आपको जो ड्रॉ खींचते हैं और फोर्स है, दोनों के अंदर देखा जाए कि 45 एंगल होना चाहिए हेड मूवमेंट की। और उसका जैसे येलो लाइन देखिएगा आपके, अब इसका शेप जैसा गन या बैरल के आना चाहिए, गन का पॉइंट आगे है वो हैंड के अंदर, और बैरल शेप आपका शोल्डर और इधर राइट एल्बो की तरफ ऐसा बैरल शेप होना चाहिए। तो ये आपको बायोमेकेनिकल स्टडी ऐसा दिखा दिया चाहिए, लेकिन इट इज नॉट मैंडेटरी कि 45 डिग्री ही आना चाहिए, दैट मे बी वेरी, सबका 40 आएगा, खुशी का जाएगा, लेकिन ये सारे बायोमेकेनिकल प्रिंसिपल दिखा देते हैं, हर ऑब्जेक्ट हर चीज 45 डिग्री में उसका एक्यूरेसी अच्छा है। ये सारे बेसिक बायोमेकेनिक्स, कोई भी ऑब्जेक्ट है, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, उसका 45 डिग्री में मैक्सिमम एक्यूरेसी है। Yes, again you just watch one other very important video. This most how you analyze, दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। Yes. Just closely watch. It is a graphical representation. This beater का video है, very important. इसमें वर्ड कुछ नहीं है, खाली देखना है आपको। How it is graphical representation present, and how you study the motion of shot, angle of shot देख लीजिए। This is the drawing and first step। जो एंगल बनता है, रेड एंगल देखिए कैसा कैसा जो लाइन बन रहा है, इसके अंदर कंसिस्टेंसी होना चाहिए, वन शॉट टू अनदर शॉट। देखिए आप रेड, ये आपको खाली कंप्यूटर ग्राफी देगा कि आपको उस एंगल में कैसा उसने पुल किया था। देन अगेन सेम वही एंगल में मैच हो गया, देख लीजिए आप। See again previous line and same this line match होना चाहिए, same one shot to another shot same रहेगा। अगर वो line match नहीं होता है तो इसका मतलब one shot to another shot change, it's matching, it is perfectly matching। previous line में match हो रहा है, front view, yes, it is exactly matching one shot to another one।
This type of analysis we require. This is the top view. Top view में देखिए आप. This view are generally we are missing. ये हमें देखने नहीं मिलता है टॉप व्यू, क्योंकि हम लोग सामने खड़े रहते हैं या पीछे खड़े रहते हैं, बैक में खड़े रहते हैं. ये सिंपल शॉट लिया उसने. अभी नाउ इट इज कम टू ग्राफिक. ग्राफिक में देखिए आप, उसने क्या है, पहला एंगल क्या था, तो देखिए स्ट्रेट एंगल. देखो बराबर से परफेक्ट मिला है इसका. लाइन ऑफ एप्लीकेशन लाइन. देखिए देखिए राइट एल्बो देखिए आप उसका. देखिए राइट एल्बो लाइन देखिए, परफेक्टली मैचिंग. कैसा परफेक्टली मैच हो रहा है. वन शॉट टू अनदर परफेक्ट होगा. नो वेरिएशन. रेड लाइन को मैच कर देख लीजिए आप. रेड लाइन के ऊपर लाइन नहीं जा रही है. प्रीवियस लाइन और ये दोनों लाइन मैच हो रहे हैं. यस परफेक्टली. ये हो गया आपका टॉप व्यू. And again you match. Back view. Back view is also very important. देखिए आपका एंगल सही देता है कि नहीं. हम तो क्वेश्चन में आएगा. यस परफेक्ट एंगल. सिंपल शॉट लिया. देखिए ग्राफिक ग्राफ में देखिए अभी. देखिए पहले लाइन में दूसरे लाइन में देखिए कैसा लाइन मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा है. यू कैन से शॉर्ट साइकिल आल्सो. वन शॉट टू अनदर शॉट. इस शॉर्ट साइकिल यही है. एक शॉट से दूसरा शॉट मिलना. और आप कैसा कैसा एप्लीकेशन ऑफ कोर्स करके एक शॉट से दूसरा शॉट मिलाते हैं. See this very important position. देख लीजिए इसको एक्स्ट्रा स्लो किया हुआ है टू मेंटेन. हाउ इट स्लोली लाइन मैच हो रहा है. मतलब वन शॉट टू अनदर शॉट मैच हो रहा है परफेक्टली. Just 1 minute. Thank you. I'll come to again my slide. Yes. दिखाई दे रहा है संजय जी? हेलो. हाँ प्लीज गो हेड. वी आर विजिबल. गो हेड. Yes, yes.
ये अभी जो शॉट साइकिल दिखाई, अभी यही दिखाई, वन शॉट टू अनदर शॉट कैसा मैच करना है। यहाँ पे आपको सारे आपके बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स, लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, दोनों सब मैच होता है सारा एक साथ टुगेदर। इसके प्रिंसिपल एप्लीकेशन परफेक्ट मैनर हो गया, तभी आपने लास्ट वीडियो में देखा है कि कैसे कैसा एक शॉट टू अनदर शॉट मैच होता है। इसको ये साइकिल को, ये शॉर्ट साइकिल विथ शॉर्ट टाइम, ये साइकिल को रिपीटेडली करना है, ये शॉर्ट साइकिल बोलेंगे, वन शॉट टू अनदर शॉट। देन देखिए बायोमैकेनिक एनालिसिस फॉर ग्रिप। अभी ग्रिप में क्या होगा, मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या होता है, हम लोग ग्रिप को सही ढंग से यूज नहीं करता है। इधर 45 डिग्री एंगल होना चाहिए, अगेन दिखा है रिस्ट का है, तभी आपको ट्रेवल करना है। कहाँ पे ग्रिप का पोर्शन कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना है, D1, D2 और D3, ये पॉइंट आपको समझाने के लिए बताया है। तो इसको आप ट्राई टू इम्प्लीमेंट। अगर ये फोर्स अगर इनर लाइन फोर्स करेंगे, लाइफ लाइन के अंदर करेंगे, तो आपका वो हैंड का फोर्स आप सही तरीके से यूज नहीं कर पाओगे। इसके तरफ आपको बहुत ख्याल देना जरूरी है। देन देखिए हाउ टू अलाइन, वो आर्म के लिए देखिए, आर्म के साथ में आर्म के अंदर अल्ना एंड रेडियस है और इधर ह्यूमरस है, ये दोनों को मैच करके आपका स्ट्रिंग लाइन और फोर्स लाइन कैसा करना है, ये सारा चीज देखिए। अगर मैच नहीं होता, यू शुड बी रोटेटेड, थोड़ा सा उसको अलाइन करने के आपको करना ही पड़ेगा। ये ब्लू लाइन देखिए, यू एक्चुअली योर एरो लाइन, एक्चुअली यूज लाइन, और दिस इज रेड लाइन इज एक्चुअली आपकी एप्लीकेशन ऑफ लाइन, फोर्स ऑफ लाइन, ये सारा चीज आपको मैच करना पड़ेगा। तो इस वो आर्म में। देन देखिए इधर देखिए बायोमेकेनिकल एनालिसिस फॉर ड्रॉन एंकर, सेम आपको वीडियो में दिखाया, एक्सपांस पोजीशन में भी दिखाया कैसा कैसा होना चाहिए, दोनों शोल्डर का क्या पोजीशन होना चाहिए, बैक का क्या पोजीशन होना चाहिए, शोल्डर, ये जो स्कैपुला क्या है, ये स्कैपुला के अंदर मसल लगी हुई है, शोल्डर होना चाहिए, लेफ्ट शोल्डर एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द बो हैंड साइड में, राइट शोल्डर का भी फोर्स राइट साइड में चाहिए, प्लस ये राइट आर्म का फोर्स बैक साइड चाहिए। ये दोनों को बायोमेकेनिकली आपको सिम्टम्स सिमेट्रिकली, कंटिन्यूटी ऑफ फोर्सेस, जॉइंट ऑफ फोर्सेस, इसको सारे मिलाना पड़ेगा, तभी आप एक परफेक्ट पोजीशन में आ सकते हैं। अगेन सेम फोटो, दैट इज स्केच वर्जन, दिस इज द ओरिजिनल फोटो। अब इसको भी एनालाइज करिए, देखिए इधर भी 45 डिग्री का एंगल, बैरल गन का शेप का एंगल मिला हुआ है। देखिए लाइन ऑफ फोर्सेस, अगेन यू कैन सी देयर लाइन ऑफ फोर्सेस, ये बेसिक आपका ये पोजीशन आना चाहिए, रेड लाइन इज परफेक्ट, लाइन ऑफ फोर्सेस के अगेन ब्लू मार्क है, दिस इज द बायोमेकेनिकल, दिस इज द ड्राइंग पोर्शन। Here again it is correct forces, incorrect application. आपका ऐसा करेक्ट एप्लीकेशन है और इनकरेक्ट एप्लीकेशन। करेक्ट एप्लीकेशन है ग्रीन लाइन देखिए टुवर्ड्स टारगेट जा रहा है, इनकरेक्ट एप्लीकेशन टारगेट से डाइवर्ट होकर जा रहा है। ये सारा चीज आपको छोटी छोटी मायने रखता है, इसको सारा चीज आपको छोटा छोटा वो करेक्शन करेंगे तभी आप परफेक्शन की तरफ जा सकते हैं। वेदर रिकर्व बोलो या कंपाउंड बोलो, कंपाउंड के अंदर तो और ज्यादा परफेक्शन चाहिए, रिकर्व के अंदर भी ज्यादा चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि कंपाउंड और ज्यादा चाहिए, क्योंकि कंपाउंड के अंदर मैक्सिमम स्कोर का लेवल देखिए क्या है। अगर 700 और 700 के अंदर कितने आर्चर फंसे हुए हैं, वो क्रॉस करना है। तो छोटा छोटा चीज बहुत बड़ा मायने रखती है। इवन रिकॉर्ड आल्सो, अगर आपको टॉप 340 के ऊपर स्कोर जाना है, ये छोटा चीज है, सही है। और ये छोटा चीज आपको नेकेड आई से देखने नहीं मिलेगा, बायोमेकेनिकल एप्लीकेशन थ्रू ही उसको आप करेक्शन कर सकते हैं, आर्चर को करेक्शन कर सकते हैं, कोच को करेक्शन कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है क्लिकर रिएक्शन टाइम, जब वे अप्लाई कर सकते हैं। दिस रिएक्शन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप क्लिक एंड साउंड, इसके अंदर जो टाइम है इसको बोलते हैं हम लोग क्लिकर रिएक्शन। जब क्लिक होता है तो फोर्स कंटिन्यू होता है, उसका क्या रिएक्शन होगा, जैसा ही क्लिक होगा आपका लाइन ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स थोड़ा सा भी चेंज होगा, तो थोड़ा सा चेंज, दैट मोमेंट में आपका एरो रिलीज हो गया, तो आपका एरो का पाथ चेंज होगा, डायरेक्शन ऑफ एरो चेंज होगा, और रिजल्टिंग उसका सही नहीं आएगा जैसा चाहिए। तो ये मोशन क्लिकर ऑफ रिएक्शन टाइम, इसको मिनिमाइज करना, इसको कंटिन्यूएशन रखना, इसको इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हम लोग इसकी तरफ बहुत कम ख्याल देते हैं, बट क्लिकर ऑफ रिएक्शन टाइम इज बहुत जरूरी है कि क्लिक एंड रिएक्शन, क्लिक के बाद मसल को टाइम लगता है रिएक्शन होने का। जब आप क्लिक होता है, जब मसल से खींचता है, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स करता है, स्ट्रेट फोर्स करता है, अप्लाई करता है, ये बहुत सारे बायोमेकेनिकल प्रिंसिपल अप्लाई किया, लेकिन क्लिक और रिकॉर्ड करना मिलियंस ऑफ सेकंड, इसमें डिफरेंस है, तो वो टाइम लगता है उसमें। तो उसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा पुल हो सकता है, कम पुल होता है, कंटिन्यूएशन पुल होता है, उसमें ही कम ज्यादा फोर्स क्रिएट होगा, लिम्स का पावर कम ज्यादा होगा। तो लिम्स का पावर कम होगा तो नेचुरली एरो के ऊपर इफेक्ट आएगा, ट्रेजेक्टरी के ऊपर इफेक्ट आएगा, एंगल के ऊपर इफेक्ट आएगा, और फोर्स के ऊपर उसका रिएक्शन हो जाएगा। इसको हम मिनिमाइज करना चाहिए। अब इसको मिनिमाइज करने का एक सिंपल वे है, कैसा करेंगे आप, कंप्यूटराइज ग्राफिकल आप स्टडी कीजिए,
आपको वार्निंग देगा, कितना टाइम देगा, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, इम्पल्सिस थ्रू आप इसको स्टडी कर सकते हैं। देन ये बायोमेकेनिकल टाइम, ये अगेन इस एग्जांपल 100 मिलीसेकंड के अंदर इसका रिएक्शन होता है। जैसे साउंड एंड मसल, इसमें क्या होता है, क्लिकर रिएक्शन में साउंड होता है, दैट साउंड इट इज ब्रेन रीडिंग, ब्रेन रीड करता है आपका साउंड, बट एक्टिवेशन ऑफ पावर किसको यूज करना है, मसल को, एरो किसको छोड़ना है, मसल को। जैसा कि साउंड हो गया तो ये ब्रेन एक्टिव हो गया, ब्रेन में सिग्नल देना है आपके मसल को कि नाउ क्लिक हो गया, अभी आप रिलीज करिए एरो। ये रिएक्शन टाइम में थोड़ा टाइम लगता है, इसी टाइम के अंदर आपका फॉल्ट होता है, वो फॉल्ट को आप मिनिमाइज कर सकते हैं थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ बायोमेकेनिक्स, और ये बहुत जरूरी है। देखिए साइटिंग मोशंस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप सभी सब कुछ ठीक सही चीज है, एरोलाइन ठीक है, बोलाइन ठीक है, एनालिसिस ठीक है, सारा चीज ठीक है, लेकिन ये करते करते आपका साइट जो टारगेट में है वो हिलता है, मिनिमाइज है, मोशन करते रहता है, लेफ्ट राइट, ऊपर राइट, नीचे राइट, थोड़ा सा मूव होता है, येलो टू रेड, रेड टू लेफ्ट, राइट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट होकर रहता है। इसको मोशन को ऑसिलेट करना, उसको रिसर्च करना, ये बायोमेकेनिकल पेज करना, इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। वी कैन नॉट स्टॉप 100%। जितना मिनिमाइज करेंगे उतना आर्चर का स्टेबल होगा, जितना आर्चर स्टेबल होगा उतना कंफर्टेबल जोन होगा, इतना आर्चर स्टेबल होगा उतना हाई एक्यूरेसी के स्कोर जाएगा, इतना परफेक्ट में एंगल और एवरीथिंग मेंटेन होगा। ये दिस आल्सो वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ द टेक्निकल साइट आप बोल सकते हैं, वो जो ड्रॉबैक्स है इसको हम लोग मिनिमम कर सकते हैं। इसके तरफ आपको ख्याल देना चाहिए। तो इसको हम कैसा स्टडी करेंगे, साइट के ऊपर आप सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, you put on some electronic device and graphic representation in computer, उसको अटैच करके आपको। और एक मैं बोलना चाहता हूँ इसके बारे में, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन ऑफ वीडियो एनालिसिस, ये सारा चीज हमारे जो कुलीग है मिस्टर कमलाकर रेड्डी, वो आपको आने वाले इसमें स्पेशली इसी के ऊपर हाउ टू अप्लाई वीडियो एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड वीडियो एनालिसिस, एक आर्चर को कैसा एनालिसिस, स्पेशली उनका सब्जेक्ट वही है, तो आप उसको आपको फर्दर डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा और वो आपको सही डायरेक्शन से गाइड करेंगे। वो अगर आपको उसको क्वेश्चंस है कुछ है उनको भी पूछ सकते हैं, मेरे से होते हैं इसमें, लेकिन पूरा कैसा एप्लीकेशन करेंगे, कौन कौन सा एप्लीकेशन करेंगे, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर सही है, कौन सा ढंग से सही है, कैसा स्टडी करना है, वो आपको फर्दर उनका वेबिनार में, सेमिनार यही है, इसी के सब्जेक्ट के ऊपर है, वी फर्दर यू कैन स्टडी दैट पोर्शन। तो इसका जो रीडिंग है, देखिए साइट के अंदर जो माइक्रो मोशन आ रहा है, देखिए साइट ले लिया हम लोगों ने, एम ले लिया, ये कंप्यूटर में दिख रहा है आपको, कंप्यूटर में स्क्रीन में दिख रहा है, स्क्रीन में दिख रहा है कि सब येलो लाइन वगैरह सब मी का रेड लाइन के अंदर देखो येलो लाइन है, इट इज द मोशन। जैसा कि मोशन थोड़ा लेफ्ट में गया उसी टाइम में आपका एरो रिलीज हो गया, सो योर टेक्निकल फॉल्ट, तो आपका फॉल्ट हो गया, तो आपका एम अगर शिफ्ट होकर 9 में गया और 10 में गया, हाउ यू एक्सपेक्ट हिट इन 10 और एक्स में कैसे जाएगा, क्योंकि टेक्निकली आपने सही नहीं किया उसको। जब वो स्टेशनरी रहेगा, येलो में रहेगा, उसको मिनिमाइज होगा, तभी तो एरो सही जाएगा, क्योंकि आपने एम ही गलत कर दिया, प्लस एप्लीकेशन ऑफ फोर्स गलत है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स गलत है, लाइन ऑफ फोर्स गलत है, तो आपका एरो अंदर आएगा ही नहीं है, क्योंकि इनिशियली आपका लॉन्चिंग गलत हो गया उसमें। तो ये आपको स्टडी कौन देगा, इस एप्लीकेशन, बायोमेकेनिक एप्लीकेशन आपको साइटिंग मोशन के थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हैं। हाउ इट इज, दिस इज कंप्यूटर ग्राफ, ये वर्टिकल फोर्स, हॉरिजॉन्टल, देखिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टडी, ये आपका साइट ऐसा टारगेट के ऊपर घूमते रहेगा, ये दिस टाइप ऑफ ग्राफ करेगा। इसको हम मिनिमाइज करना है, जितना मिनिमाइज करोगे उतने आप उसको परफेक्शन की तरफ जाओगे। देन बॉडी स्वे, ये जो माइक्रो बॉडी स्वे इट इज द वन ऑफ द, इस आप बोल सकते टेक्निकल फॉल्ट, टेक्निकली नहीं बोल सकते, स्किल फॉल्ट ही बोल सकते इसको, इस प्लस टेक्निकल भी आएगा। जब हेवी इक्विपमेंट आएगा तो बॉडी स्वे होने की ज्यादा चांसेस है बियॉन्ड इट कैपेसिटी, जिससे माइक्रो मोशन एंड ऑसिलेशन इन अपर बॉडी सेगमेंट, जब आप आर्चर शूट करता है, खड़ा हो जाता है, तो वर्टिकली जब आप खड़े रहेंगे इसका माइक्रो मोशन स्टार्ट हो जाता है, ये मोशन स्टडी करना है। ये मोशन क्यों होता है, योर बेस इज नॉट परफेक्ट, योर फाउंडेशन इज नॉट परफेक्ट, योर बेसिक फंडामेंटल्स का जो आपका बेसिक जो स्टांस वगैरह वो परफेक्ट नहीं है, बहुत सारा चीज है उसके अंदर एप्लीकेशन, इसको अवॉइड करना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी योर अप्लाइड इज नॉट परफेक्ट, ये सारा चीज आपको स्टडी करना है। ये स्टडी कैसा करेंगे, वॉबलिंग बोर्ड के थ्रू करेंगे, कंप्यूटराइज एप्लीकेशन में स्टडी करेंगे, उसको आप स्टडी करके ये करेंगे। और एक मैं आपको चीज को मिलेगा, टुडेज आर्चरी इज टोटली क्लिनिकल आर्चरी, आपको क्लिनिकली आर्चर को ज्यादा एक्सपर्ट बनाना है, उसको ग्राउंड पे लेके आना है। ऐसा नहीं आप ग्राउंड में शूट करो, बट उसका क्लिनिकली ज्यादा आपको उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, क्लिनिकल के ऊपर उसको स्टडी करना पड़ेगा, क्लिनिक में ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा इन बायोमेकेनिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ऑल एक्सेप्ट में आपको क्लिनिक में ज्यादा खींचना पड़ेगा।
जब वो परफेक्शन जाएगा तब ग्राउंड की तरफ आपको उसको अप्लाई करना है। आपको सारा प्रिंसिपल आपको ग्राउंड में अप्लाई करना है, उसको ग्राउंड में रिजल्ट लेना है, बट ये एनालिसिस सिस्टम आपको क्लिनिक में करना है, तभी आजकल इसको आपको परफेक्ट की तरफ से आप जा सकते हैं। देन देखिए शॉर्ट साइकिल, शॉर्ट सीक्वेंस, अभी जो आपको दिखाया मैंने वीडियो में, शॉर्ट सीक्वेंस में कैसा कैसा इवेंट, एक शॉट के लिए क्या क्या आप स्टेप अप्लाई करेंगे, दिस इज अ पर्टिकुलरली सीक्वेंस, कौन कौन सा आपका क्या ड्राइंग, एंकरिंग, ट्रांसपोर्ट, एक्सपांड, होल्ड, रिलीज। इसके ब्रीदिंग का बहुत अहम रोल है, ब्रीदिंग को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। जस्ट एक्सपांड एंड क्लिकिंग के बीच में आपको फोर्स को मेंटेन ब्रीदिंग ही करेगा। अगर आप थोड़ा सा भी ब्रीदिंग में आप करेंगे, मोस्ट ऑफ द आर्चर क्या होगा, 90% ऑफ आर्चर हमारा ब्रीदिंग करते हैं बट दे डोंट नो हाउ टू डू द ब्रीदिंग इन परफेक्ट मैनर। जो ब्रीदिंग परफेक्ट मैनर करेंगे उनका स्टेबिलिटी अच्छा है, उनका सारा चीज अच्छा आएगा, क्योंकि परफेक्टली उसका एप्लीकेशन अच्छा होगा। स्टेबिलिटी आपको बॉडी स्ट्रक्चर, पोर्शन एंड सिगमेंटल स्टेबिलिटी आएगा। तो मोस्ट ऑफ द हमारे आर्चर क्या करते हैं, 90% आर्चर बोल रहा है, मोस्ट ऑफ द हम लोग 90% ऑफ आर्चर क्या करते हैं, क्लिक इमीडिएटली आपका उसका एंगल चेंज हो जाता है, लेकिन क्लिक के बाद आपका एरो उधर ही है, एरो रिलीज नहीं हुआ, उसी समय आपका चेंज हुआ, उसी समय आपका ब्रीथ छोड़ देते हैं। नो, इट इज टोटली रॉन्ग। आपको मेंटेन करना है थ्रू आपको फॉलो थ्रू। जो आप ब्रीदिंग, एंकरिंग में या ट्रांसफरिंग एंड होल्डिंग में लिया है, एक्सपेंशन में, क्लिक, रिलीज, फॉलो थ्रू होने तक सेम रहना चाहिए। ये सेम तो नहीं रहता, थोड़ा सा कम होता है, बट इट इज ट्राई टू मेंटेन सेम। 90% आर्चर वही करते, क्लिक के साथ साथ ही वो छोड़ देते। ये जब पोर्शन आ जाएगा तो अल्टीमेटली आप ही एरो को साइड लाइन कर रहे हैं, एरो साइड लाइन नहीं हो रहा, फोर्सफुली यू आर ओनली डाइवर्टिंग द एरोस बिकॉज आप इन प्रॉपर यू आर क्लिकिंग एंड क्लिकिंग को डिस्टर्ब कर रहा है आपका ब्रीदिंग। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ख्याल देना चाहिए। देन एरो पैराडॉक्स, ये द बेसिक फिजिक्स के प्रिंसिपल्स है। ये एरो पैराडॉक्स आपको सबको देखना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, पीछे से हम लोग उसको फोर्स अप्लाई करते हैं, इट हैज टू बेंड, इट हैज टू बेंड अप इट्स सेंटर ऑफ एक्सिस। तो एरो का सेंटर ऑफ एक्सिस, सेंटर ऑफ एरो है, वहां बेंड होना ही होना है। जब आप पीछे से एरो रिलीज करेंगे, बो के क्लिकर तक निकलने तक 3 टाइम वो बेंड होता है, उसके बाद बो से आगे जाएगा, बो से थ्रू होगा, चौथे डायरेक्शन में बो के थ्रू होगा, 3 जर्क तक वो बो के अंदर ही है। अब वो जर्क के अंदर हम लोग कोई एंगल गलती करते हैं, डायरेक्शन गलती करते हैं, लाइन ऑफ फोर्स गलती करते हैं और क्यों करते हैं, तो उसका जो हम लोग वो जो गलती डाइवर्शन के लिए अगेन पुश कर रहे हैं, वो गलती को अगेन बढ़ावा मिलेगा, वो गलती और बड़ी हो जाएगी। तो इसको हम मिनिमाइज करेंगे, हम इसको मिनिमाइज करना चाहिए। बट ये एरो तो बेंड हो गई। देखिए ये जैसा कर, देखिए आपके साथ, देखिए आपका स्ट्रेटजी देखिए, पॉइंट वो देखिए, एरो कहाँ देखिए, लाइन ऑफ ट्रेजेक्टरी देखिए, पोजीशन ऑफ टारगेट देखिए, बट एरो का डायरेक्शन देखिए कहाँ जाएगा। ये तो बेसिक प्रिंसिपल है। एरो डाइवर्ट होके फिर स्ट्रेट होगा, उसको मिनिमाइज करना है, बेंडिंग को मिनिमाइज करना है बाय अप्लाइंग द फोर्स, बाय ट्यूनिंग द बो। ये सारा चीज आपको प्रिंसिपल अप्लाई करके उसको हम लोग बेंडिंग को कम करना है। एरो कभी स्ट्रेट जाएगा नहीं है, एज पर द फिजिक्स प्रिंसिपल, लॉ ऑफ प्रिंसिपल और सारा चीज, कभी एरो बेंड होके ही जाएगा। आप देखा होगा हाई स्पीड एरो में पूरा एरो स्नेक जैसा जाता है, इवन दो इट हिट्स इन टेल। जब ओलंपिक वीडियो में देखिए एरो सारा स्ट्रेक जैसा जा रहा है, लेकिन टेन के अंदर जा रहा है, लेकिन उसको क्या परफेक्टली मैच कर रहे हैं। ये सब बेसिक प्रिंसिपल यू कैन नॉट अवॉइड, बट इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। इसी के अंदर अगर हम लोग ज्यादा गलती करेंगे तो उसको हम लोग को रिजल्ट ज्यादा बैड मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा। इसको हम कम करने के ट्राई करेंगे। देखिए हम इंडिया के टॉप मोस्ट आर्चर, देखिए इनका देखो एरो पैराडॉक्स, देखिए एरो बेंड हो रहा है, यू माइन्यूटली ऑब्जर्व, ये एरो बेंड इट्स ऑन ऑफ एक्सिस, जैसे कि हम लोग इसको कैच किया, फोटो किया, आपको भी देखना चाहिए। इनका अब जब एरो बेंड होता है, यू मस्ट बिलीव दैट एवरीबॉडीज आर्चर्स का एरो बेंड होना ही होना है, और सभी का होना है। दिस इज बेसिक प्रिंसिपल। बट आप ये नहीं है कि अतनु दास का ओलंपिक का वीडियो है, अतनु दास ओलंपिक के एरो ने बेंड हो, एरो ये बेंडिंग प्रिंसिपल में एरो शूट किए, इवन दो शूट इज वेरी एक्सीलेंट, लेकिन ये सारे बेसिक प्रिंसिपल में ही उसका एरो बेंड होना ही है। Then this is topmost again to the compound archer, देखिए ऑब्जर्व कीजिए आप, ये नहीं कि these are 700 plus shooter archer. Rajat, I believe that 712, 713 Abhishek, Sureka also, but उनका एरो देखिए how it is flying, it is bent because this is a physical condition. आप इसको एक कर सकते, इसको जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उतना मिनिमाइज कर सकते, but totally you cannot stop. Then segmental stability, ये सारा चीज करने के लिए आपके segmental stability ये है कि सिगमेंट मतलब जिस हाथ में आपको वो पकड़ा है, टोटल बॉडी इस सिगमेंट, इसको एक सिगमेंट बन जाता है। ये सिगमेंट करने के लिए आपको बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल
प्लस योर बो एंड एरो का रिएक्शन। राइट साइड देखिए आप, बो एंड एरो का रिएक्शन देखिए, राइट साइड डाउन देखिए, रिलीज बाय आर्चर, एरो ने रिलीज किया, देन उसके साथ क्या रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन, उसके साथ इमीडिएटली क्या रिएक्शन है, वेदर इट इज बिग और स्मॉल, अगर स्मॉल होगा इट इज परफेक्ट वे, देन आर्चर्स बो एरो इंटर रिएक्शन, उसका दोनों का क्या इंटरेक्शन है, उसके बाद फ्लाइट ऑफ एरो कैसा, किस ढंग से वो फ्लाइट जा रहा है, वेदर इट इज बिग स्मॉल, कौन सा फॉल्ट है, दैट यू हैव टू एनालाइज। तो हाई स्कोर का इधर देखिए, ये तो बायोमैकेनिकल सेगमेंट देखिए, बॉडी पोजीशन एंड अलाइनमेंट, देन सेगमेंटल स्टेबिलिटी, देन साइटिंग मोशन, ये सारा चीज मिलेंगे तभी आप लोग को हाई स्कोर की तरफ जा सकते हैं, परफॉर्मेंस की तरफ जा सकते हैं, ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। I believe this is the thing simply. Then recently I want to say there is new top software you can use for your further development biomechanically. Mentis X, it is specially designed for Recover Archer. Sorry, Mentis 8, it is Recover Archer and Bradley Edison is specially using, and the Mentis X is for compound. This software है for analysis biomechanics. आपका इसमें पूरा perfect डेटा, you can go through the net, Mentis सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, कैसे तरह से एप्लीकेशन होगा आप देख लीजिए, इसको आपने डेफिनेटली होगा, और वर्ल्ड के टॉप मोस्ट आर्चर एंड टॉप मोस्ट शूटर्स इसको यूज करते हैं। देन थैंक यू वेरी मच, यू हैव द एनी क्वेरी, फॉलो मी, सेंड व्हाट्सएप, ईमेल, इंस्टाग्राम, प्लस माय आर्चरी फेसबुक आल्सो। थैंक यू वेरी मच। संजू जी, वेरी बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था, वंडरफुल सेशन बाय गंगाधर जी। गंगाधर जी, इसीलिए हम लोग ने ये बायोमैकेनिक्स का अंडरस्टैंडिंग करना हर एक कोच के लिए बहुत ही जरूरी है। जब तक आप इस चीज को अगर आप देखेंगे, जितने भी सेशन अभी तक हुए हैं, चाहे वो आप पास्कल ले ले, चाहे कोरियन आर्चर्स का लीजिए, चाहे वो आप ब्रैडी एलिसन का लीजिए, हर एक चीज में एक ही चीज बताया है कि जब तक आप फोर्स, जो लाइन ऑफ एक्शन है, जब तक वो लाइन ऑफ एक्शन, जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है फिजिक्स में, उस लाइन ऑफ फोर्स जो उस लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं लगेगा, तब तक एरो कभी स्ट्रेट जा ही नहीं सकता। तो जो आज देखा वो प्रिंसिपल को समझा, जो आज ब्रैडी एलिसन आपके जो वर्ल्ड ओलंपिक शूट करते हैं, या अतानुदास शूट करता है, या आपका तरुणदीप करता है, आप जब भी देखते, गलती कब होती है, जैसे उन्होंने बताया, जब आप रिस्ट जो होता है और आपका जो आपका एंकर होता है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन में जब तक नहीं आएंगे, फोर्स का रिलीज स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। जितना कम एंगल बनाएंगे, क्योंकि क्या होता है, फोर्स डिवाइड हो रहा है कॉस थीटा एंड साइन थीटा में, तो जितने आप एंगल बनाते हैं स्ट्रेट लाइन से, जब भी ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, राइट जाते हैं, लेफ्ट जाते हैं, तो उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त तरीके से आपको बताया, जब फोर्स चेंज होगा, आपका फोर्स कभी भी उसमें उसका दो डायरेक्शन में डिवाइड होता है, एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, जिसको एफ कॉस थीटा बोलते हैं। तो वो आपको समझना होगा कि जब हम लोग बोलते हैं वो हेड मूवमेंट नहीं करने को, क्यों बोलते हैं, क्योंकि द मोमेंट आप करेंगे, आप देखिए जितने भी टॉप आर्चर्स है, उनका रिलीज के बाद, आपने कोरियन कोच का हमने दिखाया था कि रिलीज के बाद बिल्कुल कांस्टेंट है। उन्होंने बोला कि हम एक ऐसे जब एक्सपेंशन करते हैं 1 मिलीमीटर पे, इतना उनका पूरा अलाइनमेंट इज परफेक्ट। जो होल्डिंग पोजीशन की बात हो रही थी वो परफेक्ट होता है, उसमें वो स्ट्रेट लाइन मोशन में वो का जम दे के हमेशा स्ट्रेट मूव करना चाहिए। अगर वहां पे रिस्ट में मोशन लाएंगे, अगर आप एल्बो को टर्न करेंगे, जितना आप बॉडी के अंदर में अननेचुरल फोर्सेस लाएंगे, तो बहुत ही अच्छे तरीके से गंगाधर जी ने बताया कि ये सब चीज का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको आर्चर को कंसिस्टेंट शूट करना है। अगेन समझिए, आपका आर्चर शूट करता है, मे बी मिसअलाइन से भी शूट कर सकता है, मे बी 340 मार सकता है, लेकिन जब एन मौके पे जब 1-to-1 मैच होगा ओलंपिक में, वहां जाएगा, क्योंकि जो फोर्सेज हैं वो फोर्सेज उसके अगर थोड़े से भी एंगल चेंज कर जाएंगे, क्योंकि उसके डायनेमिक एरोडायनेमिक नहीं है, बायोमैकेनिकल नहीं है, तो वहीं पे वो फेल करता है और स्ट्रेस आता है, नेगेटिविज्म आती है और इसलिए नेक्स्ट शॉट खराब करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप अपने एज अ कोच प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, सबको कंप्यूटर सीखना है। पहली बात, क्यों कंप्यूटर सीखना है, क्योंकि जितने भी आपके ये सॉफ्टवेयर है ये सब कंप्यूटर ओरिएंटेड है। आपको कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, आपको बेसिक फिजिक्स का नॉलेज चाहिए, आपको न्यूटन का लॉ का मोशन का इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको वो चीज को देखना पड़ेगा। आई से भी आप देख सकते हैं एंगल, अगर मोशन हो रहा है, इसीलिए वीडियो एनालिसिस की बात की जाती है, इसीलिए एक स्पोर्ट्स साइंटिस्ट की बात की जा रही है, क्योंकि जब हम आप कोर टीम की बात करते हैं इकोसिस्टम की, अगर स्पोर्ट्स साइंटिस्ट नहीं है, अगर वीडियो एनालिस्ट नहीं है,
अगर आपका प्रोग्रामर इंग्लिश नहीं है जो डेटा का एनालाइज कर पाए, आप अकेले नहीं कर पाएंगे। हम ये नहीं बोलते कि आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको रियलाइज करना कि जो आपका सपोर्ट स्टाफ है उसको लेके चलिए, तो बहुत कुछ आप और अच्छा कर पाएंगे। इसी के साथ अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहेंगे। तो अभी तक क्वेश्चन आ गए हैं, उसके लिए बात करेंगे। गंगाधर जी, जो पहला क्वेश्चन जो आया है वो ये है, इज देयर सिंपल फॉर्मूला टू डिसाइड द एंगल ऑफ एरो? गंगाधर जी, गंगाधर विश्वजीत, देखिए गंगाधर डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए? हेलो गंगाधर, हाँ, पहला क्वेश्चन है कि इज देयर एनी सिंपल फॉर्मूला टू डिसाइड द एंगल ऑफ एरो? आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है गंगाधर जी। हेलो 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 गंगाधर, आपका थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी सुनाई पड़ रहा है आपको? अभी सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि क्या कोई एक सिंपल फॉर्मूला है एंगल ऑफ एरो डिसाइड करने के लिए? दैट मींस जो स्ट्रेट लाइन आपका है और जो आपका कोई सिंपल फॉर्मूला है? देयर इज नो सिंपल फॉर्मूला एक्सेप्ट बायोमेकेनिक प्रिंसिपल आपको अप्लाई करना है। बिल्कुल, ये छोटा, ये डिपेंड अपन वो इंडिविजुअल ऑफ आर्चर, ये थोड़ा सा मुश्किल है। बिल्कुल, तो जैसा कि गंगाधर जी ने बोला, देखिए सबसे सिंपल तरीका अगर आपको जानना है वो है स्ट्रेट लाइन मोशन का। आपको गंगाधर जी ने बताया था कि जब एरो का लाइन है, वो एरो का अलाइनमेंट, जो स्ट्रिंग अलाइनमेंट और एल्बो का, जब तक आपका एक लाइन में नहीं आएगा, दैट इज द ओनली प्रिंसिपल ऑफ बायोमैकेनिक्स जिसको आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट, बो पुल करने के बाद राइट साइड स्कैपुला बोन ज्यादा बाहर आता है, यूज इसमें क्या करना चाहिए? यूज लेवल में लेना का लिए क्या करें? नहीं, स्कैपुला करने के लिए स्कैपुला का तो इसमें रोल है ही है। स्कैपुला के साथ मसल रहता है, आपको मसल को देखिए, आप लोग प्रॉपर एक्टिवेट होता है नहीं है, मसल आप प्रॉपर यूज किया है कि नहीं, एंगल आपका प्रॉपर यूज हुआ है कि नहीं है, तभी तो बाहर आ रहा है। आउटलाइन आया मतलब बाहर कब आ रहा है, आप सही तरीके से यूज नहीं किया है। तो इसमें थोड़ा सा इसमें ऐड कर दे, जो गंगाधर जी बोले, बताया था आप लोग को, वो ये बताया था कि देखिए बैरल ऑफ द गन, गन क्या होता है, जब राइट शोल्डर का जो स्कैपुला, जब क्योंकि वेट आपका पूरा रिकर्व आर्टरी में राइट शोल्डर और उसका स्कैपुला लेता है, तो क्या होता है वो थोड़ा सा उठा रहता है कंपेयर टू द लेफ्ट, इसलिए उसको बैरल ऑफ द गन उन्होंने दिखाया था कि जो फाइनल बेस्ट शूटिंग स्टाइल कब है, जब बैरल ऑफ द गन, आपका एंगल ऑफ द एरो, जो एरो लाइन और वो दोनों का एंगल और 45 पे जब शोल्डर मिलता है, दैट इज द बेस्ट शूटिंग पोजीशन। तो इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि रिकर्व आर्चर्स के लिए बैरल ऑफ द गन जरूरी है, वो जो कंपाउंड में नहीं होगा। नेक्स्ट, आर्चरी में बायोमैकेनिक्स मेजरमेंट कैसे करेंगे? जो आपको अभी सिखाया है, एंगल वगैरह स्टडी सब ये डिफरेंट करता है आर्चर के ऊपर, लंबा आर्चर है, छोटा आर्चर है, ये बायोमैकेनिक्स को अप्लाई कीजिए, अपने आप आपको सपोर्ट मिल जाएगा। जी, हाउ डू आई इंप्रूव माय स्कोर बाय यूजिंग बायोमैकेनिक्स? There is a lot of factors is involved. Biomechanics is one of the science that help to improve your score. Not only biomechanics, बाकी बहुत सारा, all the basic science we ought to take them. जी, तो जैसा कि गंगाधर जी ने बोला, देखिए बायोमैकेनिक्स इज द प्रिंसिपल टू गेट, उन्होंने 3 चीज का बात किया था। एक बोला था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक बोला कि कम से कम एनर्जी में आपको शूट। तो आप ये रियलाइज कीजिए कि जब इतने फोर्सेस बॉडी में एक्ट कर रहे हैं, तो आप कंजर्व कैसे करेंगे एनर्जी? आपको जो जब तक वो तभी हो पाएगा जब आप बायोमैकेनिकली राइट एंगल्स, राइट एरो लाइन उस पे शूट करेंगे। नेक्स्ट, हाउ मेनी आर्चर इन इंडिया विल वी चेक बायोमैकेनिक टिल डेट? There is lot of, ऐसा नहीं है कि सारे आर्चर खराब है, बहुत सारे आर्चर अच्छे हैं। फर्दर वी रिक्वायर मोर एनालाइज फॉर देम करके एंड सपोर्ट देम। इसीलिए उन्होंने बताया कि हर एक कोच को अब थोड़ा डेटा जनरेट करना होगा। अगर वो बायोमैकेनिक डेटा जनरेट करेंगे तभी डेटा उपलब्ध होगा। अभी डेटा उतना नहीं है, लेकिन हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, फॉलो करेंगे जो गंगाधर जी ने आज सिखाया आपको बायोमैकेनिक्स में, तो वो चीज को आपको अच्छा रहेगा। When we pull bow on match time after 2 days rest, sometimes bow goes loose. Why and what do we do? नहीं, वो लूज होने का रीजन तो वो तो लूज नहीं होता, आपका एनर्जी बूस्ट हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म रेट होके आपका एनर्जी बढ़ गया, इसलिए तो एनर्जी लूज लगता है। दैट इज द अगेन फिजियोलॉजी एंड एनर्जी सिस्टम यू बैक करता है।
तो थोड़ा इसकी तरफ आपको थोड़ा सा साइंटिफिक वे में देखना पड़ेगा, वो कभी लूज नहीं होगा। करेक्ट, वो नहीं लूज होता क्योंकि आपने रेस्ट लिया है, आपने एनर्जी बैक मारा, वो फटीग्ड अप नहीं है, तो आपको लगता है कि एनर्जी लेवल ज्यादा है, इसलिए आपको लगता है आराम से पुल कर रहे हैं, वो लूज नहीं होता, जैसा गंगाधर जी बोले। सर, मेनी आर्चर्स हैव लोअर बैक पेन, मे बी लैक ऑफ स्ट्रेंथ, बट मेन कॉज अकर्स सोसियोलियोसिस, एंगल ऑफ लोअर स्पाइन, इस करेक्शन ऑफ स्टैंस, चेंज द एंगल विल हेल्प टू रिड्यूस पेन। आपका क्या कहना है इस बारे में? ये तो बहुत सारा इफेक्ट हो सकता है इसमें लोअर बैक पेन का तो वो हेवी हो सकता है, बायोमैकेनिकल परफेक्ट नहीं हो रहा, उसका पोस्चर कौन सा है, कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा है, स्टैंडिंग पोजीशन क्या है उसका, बेटर टू कंसल्ट किसी बायोमैकेनिस्ट की तरफ से कंसल्ट कीजिए। और अगर ज्यादा एक्स्ट्रा सीरियसली फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये सारा चीजें आप तो उनको कंसल्ट कर दीजिए। और एक चीज है इसमें लोअर बैक पेन होने का, हेवी पाउंडेज अगर आप बियॉन्ड योर कैपेसिटी करते हैं और आर्चर कोई जबरदस्ती करता है, उसमें भी चांसेस ज्यादा है। देखिए, एक चीज सबको बता दे, एक चीज आपको अपने पूरे सेशन में बताया था, और वो शायद आप लोग को मे भी ध्यान से उतर गया होगा, इसलिए दोबारा हम बताना चाहेंगे। उन्होंने क्या बोला था? बायोमैकेनिक्स को अगर अप्लाई आप करना चाहते हैं, पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हर कोच को जानना कि लोअर पाउंडेज बो यूज कीजिए। अगर आप हायर पाउंडेज बो को बचपट दे देंगे, उनका स्ट्रेंथ है नहीं, वो ठीक से पुल नहीं करेंगे, टोटली उनका बायोमैकेनिकली रिवर्स हो जाएगा। इसीलिए किसी भी एकेडमी में, किसी भी अच्छे आप कोरियन सेंटर जाइए, वहां पे कम पाउंडेज के बो से पहले बेर बिना ओनली फ्री हैंड शूट कराते हैं, फिर उसको बेर बो पे लाते हैं, रबर पे लाते हैं, फिर बेर बो पे लाते हैं, 10 मीटर ले जाते हैं, 18 से 20 पाउंड का बो से चलाते हैं। जब तक उसका पूरा बॉडी का बायोमैकेनिकली वो शूट नहीं करने लगता है, तब तक कोरिया में आर्चर को एडवांस में ले ही नहीं जाते। तो वो समझिए क्यों हो रहा है। उसीलिए गंगाधर जी बोल रहे थे कि आपको कभी भी, जहां आप हाई पाउंडेज स्ट्रेंथ से ज्यादा यूज करेंगे, आपका टोटल बायोमैकेनिक एंगल आपका, क्योंकि क्यों हो रहा है, उन्होंने 2 स्लाइड आपको दिखाया। एक स्लाइड दिखाया था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, रिएक्शन ऑन द शोल्डर मसल, रिएक्शन ऑन द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, रिएक्शन। आप एक चीज याद कीजिए, जब भी फोर्स अप्लाई करते हैं, उसका अपोजिट रिएक्शन में न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से आपके बॉडी में फोर्स अप्लाई होता है। आप कभी देखे बॉडी भी फ्लिंच क्यों करता है? कोलैप्स इसलिए करते हैं क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे ही आप उसको रिलैक्स करेंगे वो वापस आपको ब्रेक कर देता है। तो इसलिए इसको समझिए, न्यूटन के थर्ड लॉ को समझिए, एक्शन एंड रिएक्शन को समझिए, और तब आप समझ पाएंगे कि क्यों हम शूटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू मेजर माइक्रो मूवमेंट? माइक्रो मूवमेंट इज द ओनली ऑप्शन इज कंप्यूटर ग्राफिक। माइक्रो मूवमेंट ऑब्जर्व करना नेकेड आई से इज वेरी टफ। तो आपको एक वही डाटा दे सकता है कंप्यूटर, जो कहाँ पे आपका मोशन, माइक्रो मोशन हो रहा है करके, कंप्यूटर ग्राफिक और बायोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके बारे में आपको डिटेल अपना कमलाकर स्टडी हाउ यू एनालाइज ए माइक्रो मोशन, इसका पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट है, वही देगा आपको। बट विदाउट इक्विपमेंट आप इसको स्टडी नहीं कर सकते बायोमैकेनिकली और माइक्रो मोमेंट को। हेलो, या नेक्स्ट क्वेश्चन है, angle of chin while drawing, the drawing elbow angle depends, line of force will be different, can we change angle with help of chin separator? या चीन सेपरेटर इफ यू कैन, ये थोड़ा सा आपको ईमेल चाहिए। चीन और सेपरेटर का वही है कि एंगल के अंदर आपको गैप रखने के लिए वो सेपरेटर दिया जाता है, इसमें थोड़ा सा आप चेंज कर सकता है। फिर देख लेना आपको कोई उसका आपका लाइन ऑफ फोर्स का डाइवर्शन चेंज तो नहीं होगा, ये सारा आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ड्रॉ करते टाइम बो हैंड का एल्बो बाहर निकलता है, तो बायोमैकेनिकली इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? It is a rotatory movement. It is a rotatory movement. You have to make it inward. Inward होता outward होगा, तो उसको देखना है, आपको इसको टर्न करना है। It is turn from your shoulder and ball and socket joint. यहाँ से रिस्ट से कभी चेंज नहीं होगा, वो बॉल एंड शोल्डर जॉइंट से ही टर्न होगा वो। ये ख्याल रखना। मोस्ट ऑफ द आर्चर क्या करते हैं, ये टर्न करने के लिए आपको रिस्ट एंड शोल्डर जॉइंट करते हैं, सो इट अगेन कन्वर्टेड इनटू टॉर्क में चले जाएंगे। तो वो हैंड के अंदर टॉर्क आ जाए, तो नॉर्मली बो के अंदर टॉर्क आ जाए, तो उसके लिए वो एडवर्स होने का चांसेस ज्यादा है। तो जो बो एंड शोल्डर जॉइंट से ही आपको उसको टर्न कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज गंगाधर जी ने आपको बताया है, और ये कोचेस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहुत ध्यान से इसको सुने। जब भी रिस्ट या एल्बो पे आप रोटेट करते हैं, उसको टॉर्क बोला जाता है। टॉर्क होता है रोटेशनल मूवमेंट
होता है, इसलिए बहुत जरूरी है समझना। बहुत बार हमने देखा है आर्चर्स को, कोचेस को कि रोटेट करना चाहिए जब आपको एक्सट्रीम कंडीशन में, जब आपसे बिल्कुल आपका स्ट्रिंग हिट कर रहा है, क्योंकि जब आप कुछ भी करेंगे अपोजिट नेचुरल बॉडी पोस्चर के अगेंस्ट जब भी एंगल लाएंगे टॉर्क उत्पन्न होगा, और टॉर्क उत्पन्न होगा। कोई भी ह्यूमनली जान नहीं सकता कितना टॉर्क है, वो मेजर ही नहीं कर सकते आप। अगर जो चीज मेजर नहीं कर सकते तो उसके अगेंस्ट आप फाइट कर रहे हैं और शूट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आपका कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। तो थोड़ा इस चीज को समझे, जो गंगाधर जी ने बताया, उन्होंने एंगल भी दिखाया था रिस्ट और एल्बो पे, कैसे आप रोटेट करने से कैसे टॉर्क डेवलप करते हैं, उसको अवॉइड कीजिए। इसीलिए जब स्काउटिंग करते हैं बच्चों का, तो नॉर्मल जिसका हैंड होता है, जिसका नॉर्मल चिन का पोजीशन, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर हम क्यों लेते हैं, क्योंकि जिसका अच्छा स्ट्रक्चर होगा, जिसका अलाइन बायोमैकेनिकली स्ट्रक्चर होगा, वो लड़का बहुत अच्छा करेगा, आगे में 4 साल में वो इंटरनेशनल लेवल पे चला जाएगा। और जिसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, उसमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हम ये नहीं बोलते वो नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ेगा। रोटेशनल टॉर्क्स आएंगे, फोर्सेस नहीं अलाइंड होंगे, तो उसको बहुत दिक्कत होगी हाई स्कोर करने के लिए। Does curve in spine alignment affect the shooting force or any kind of disadvantage for an archer? फिर से बोलिए। Does curve in spine alignment affect the shooting force or any kind of disadvantage for an archer? मैं इसका I didn't get क्वेश्चन क्लियर नहीं है। हाँ, क्वेश्चन क्लियर इसको बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the pressure of the third finger is not equal to the middle finger and the fourth finger, then what can we do to stay third finger on string equally, middle finger and fourth finger? नहीं, फिंगर का प्रेशर तो इक्वली नहीं होगा, कम ज्यादा तो होगा, बट टोटली थर्ड फिंगर का नहीं यूज कर रहा है। इसका मतलब 2 फिंगर में तो यू आर फोर्सफुली प्रेसिंग द स्ट्रिंग एंगल, उसका जो बोलते हैं आप स्ट्रिंग एंगल को आप फोर्सफुली प्रेस कर रहे हैं, और एक एंगल को नहीं कर रहे, तो क्या होगा, लिम्ब का फोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिम्स फोर्स दैट इज चेंजेस, अपर लिम्स और लोअर लिम्स का जो फोर्स है सही नहीं निकलेगा, वो इक्विलिब्रियम फोर्स नहीं रहेगा। तो ये चीज का आपको ख्याल रखना चाहिए कि तीनों फिंगर से खींचे, क्योंकि फोर्स अगर कम ज्यादा होगा तो इट इज डायरेक्टली इंपैक्ट ऑन योर एरोपाथ एरोस्टेबिलिटी के ऊपर वो डिस्टेबल होगा। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखिए। ये समझना बहुत जरूरी है आर्चर्स को और कोचेस को, जो अभी गंगाधर जी ने बताया। क्योंकि आप देखिए एक टिलर डिफरेंस रखते हैं, टिलर डिफरेंस रखने पे आपका जो ऊपर एंड अपर लिम्ब का फोर्स चेंज करता है। तो अगर आप ये चीज को ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, इस 2 फिंगर से बहुत डिफिकल्ट होता है चलाना। हम ये नहीं बोलते नहीं चला सकता, इट इज डिफिकल्ट। जैसा उन्होंने बोला, थर्ड फिंगर का सपोर्ट चाहिए। रेशियोज होते हैं जो आपके 30, 50, 20 जो आपका रिलीज जो आप देखेंगे वो चेंज होता है आर्चर टू आर्चर, बट जनरली देखा जाए वो फोर्स को मेंटेन करना पड़ता है। Many archers suffer from back pain during practice. How should we overcome this? It is symptoms of overload. You have to calculate your load, energy system, and yes, again it is bow poundage का भी हो सकता है। बहुत सारा फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, पर्टिकुलरली कोई रीजन नहीं है। पर्टिकुलरली आपको देखना पड़ेगा कि क्या है करके, इसको स्टडी करना पड़ेगा, कि डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि ये यही चीज है करके। बिल्कुल सही बोला गंगाधर जी ने, इसीलिए हम लोग ने बोला, आपको बार बार कह रहे हैं कि सपोर्ट स्टाफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजियोथेरेपिस्ट, फिजिकल ट्रेनर, क्योंकि वो जज कर पाते हैं कि आपके बॉडी की कैपेसिटी से बियॉन्ड आप अगर शूट कर रहे हैं, ज्यादा पाउंडेज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट स्टाफ को यूज कीजिए। अपने फिजियोथेरेपिस्ट, फिजिकल ट्रेनर, दे विल बी एडवाइजिंग यू, जो फिजियोलॉजी चेक करके कि क्या आपका बॉडी का स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से आपको बताएंगे। So please tell any software or application for self-analysis. Yeah, this next session will be there. Mr. Kamlakar will take. Otherwise, contact me. I will guide you definitely. So there is lot of software, but आपको analyze करना आना चाहिए. Which stance is the best stance for compound archer? That is depend upon the body structure of individual archer and his feeling or his body structure of individual archer and his shooting style. Yeah. देखिए गंगाधर जी ने एक बहुत अच्छा बात बताया था आपको। 2 चीज का आप लोगों को हमेशा याद रखना होगा। एक होता है लाइन ऑफ फोर्स, जो कि होता है आपका एरो लाइन, एक होता है ड्रॉइंग फोर्स, और तीसरा होता है जो आपका बैरल ऑफ द गन। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो बायोमैकेनिकली जो एंगल बन रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होगा। वो डिपेंड करेगा स्टैंस पे, कैसे आप ड्रॉ कर रहे हैं, कैसे आप अपना ट्विस्ट कर रहे हैं। जैसे ब्रैडी को देखेंगे, उसका हिप स्टेशनरी रहता है, उसका कोर स्ट्रॉन्ग है, वो अपने को टर्न करके अपना ड्रॉ को बढ़ाता है, बोलता है 3.34 इंच बढ़ा के उसका लाइन में लाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन कोच के ऊपर और आर्चर के ऊपर, वो देखेगा, स्टडी करेगा, और तभी बताया जा सकता है कि व्हाट इज द राइट थिंग।
what are the parameters to know that poundage of the bow is perfect for the archer? Comfort zone. I think it is comfort zone is the best option. Very true. आपका rhythm और comfort zone calculate, यही जो parameter हो सकते हैं. Good. What kind of software application we can use? Please suggest. Then again, it is complicated questions. Software, there is plenty of software. कौन सा software आपको कौन चलेगा biomechanically? बहुत सारे software है. Dotfish है, 90s है. Angle अभी athletics में भी बहुत सारे angle diversion के सब software आए. वो देख सकते हैं. Otherwise हमें contact कीजिए, हम आपको वो guide करेंगे. तो थैंक यू गंगाधर जी, आपने सभी क्वेश्चन का आपने आंसर कर पाए. हम जरूर उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज जुड़े थे सब लोग इसको समझे होंगे, सुने होंगे और आपके बायोमैकेनिकल एस्पेक्ट्स को वो कोशिश करेंगे अपने आर्चर को सिखाने के लिए. और मेरा पूरा उम्मीद है कि अगर जो चीज गंगाधर जी ने बताया अगर उस कोच को लोग फॉलो करेंगे तो आपके बच्चों का कंसिस्टेंसी बढ़ेगा, इंजरी कम होगा, आप एनर्जी को कंजर्व कर पाएंगे और ज्यादा चांसेस होंगे कि आपके जो आर्चर्स हैं वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत पाए. इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद गंगाधर जी. हम अपने स्पोर्ट्स साई का धन्यवाद करना चाहूंगा, एआई का धन्यवाद करना चाहूंगा, कोचेस डेवलपमेंट कमेटी का धन्यवाद करना चाहूंगा, वर्ल्ड आर्चरी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम आपके सामने लाया गया है. कल हम फिर जुड़ेंगे 8 बजे 9 बजे के करीब. कल हम लोग डाइट अपना जो न्यूट्रिशन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आर्चर्स के लिए क्योंकि बहुत डिहाइड्रेशन होता है, उनको अलग अलग स्थिति में खेलना पड़ता है, धूप में भी, कोल्ड क्लाइमेट में भी, बाहर में कभी कभी टूर्नामेंट करते हैं. तो बहुत जरूरी है कि प्रॉपर आपका कैलोरिफिक वैल्यू बैलेंस हो. आपको क्या खाना चाहिए, क्या बॉडी का रिक्वायरमेंट है जिससे पीक परफॉर्म करेंगे. तो इसको बात करने के लिए हिमानी जी कल 9 बजे आपसे जुड़ेंगी. आप सभी से निवेदन है कि काइंडली आप जुड़े. साथ ही साथ ये भी बता दें कि शाम के 5 बजे स्पोर्ट्स साइंस का सेशन होता है, साई कर रहा है, बहुत अच्छे सेशन है. आप सभी कोचेस ज्वाइन करें और उसका नॉलेज बढ़ाएं और हमें आर्चर्स को भी इसका बेनिफिट मिलेगा. धन्यवाद. जय हिंद. Thank you very much.